as you already know about CQS, so I don't think so there is a need to explain. But yes, CQS is an institute which provides the new age career trainings, right? Like for digital marketing, for graphics designing and animation, for IELTS, TOEFL, UniPrep, basically the preparation, Python, IT courses, right? Banking and finance courses, and hardware and networking. So we have more than 30 plus, we have more than 30 courses which help the students, job seekers, or the working professionals, or the entrepreneurs as well, to learn the new skill and bridging the gap between the industry and the market. जो स्टूडेंट का होता है बेसिकली उसका गैप ब्रिज करना ड्यू जस्ट बाय प्रोवाइडिंग द प्रैक्टिकल नॉलेज इंस्टेड ऑफ थियोरिटिकल. ठीक है, थ्योरी भी होता है बट प्रैक्टिकल पे बेसिकली ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि इंडस्ट्री में किस तरह से काम हो रहा है आपको बेसिकली वही चीज़ सीखनी होती है, राइट. एंड डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल प्रैक्टिकल, पूरा 100% प्रैक्टिकल आपका रहेगा. सो इफ आई टीच यू वन टॉपिक इन वन सेशन, तो वो आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करना है, देन वी विल वर्क ऑन दैट. और कोई भी इशू डाउट्स होता है, वी विल फर्स्ट क्लियर दैट डाउट, देन वी विल मूव अहेड, right? So actually this is about the CQS. And if I talk about this particular course, digital marketing, okay, so as it name suggests, digital marketing, मतलब हम मार्केटिंग तो करेंगे, राइट. दैट इज द सेम एज मार्केटिंग, जो वर्ड अब तक यूज हो रहा है, हम मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट सर्विस की हम मार्केट कर रहे हैं, राइट. सो देयर आर टू मोड्स एक्चुअली. अगर हम देखें तो मार्केटिंग के दो मोड्स हमें समझ आते हैं कि एक हमारा ऑफलाइन, एक हमारा ऑनलाइन, राइट. ऑफलाइन की बात करें तो दैट इज द ट्रेडिशनल मार्केटिंग, राइट. ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जैसे हम न्यूज़पेपर हो गया, प्रिंट मीडिया हम यूज़ करते हैं, मैगजीन्स हो गया, न्यूज़पेपर्स है, हमारा फ्लायर्स हो गए, बिलबोर्ड्स हो गए, होर्डिंग्स हो गए, राइट. वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स. बट नाउ ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज ऑल ऑब्सलीट. और अभी अगर हम बात करें अभी इस पैंडमिक की, जब से कोरोना पैंडमिक है तब से तो डिजिटल मार्केटिंग इतना बूम पर है कि नो वन इज, इफ आई टॉक अबाउट द एनालिटिक्स, 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दिया, राइट, जो ऑफलाइन भी पढ़ते थे. तो यहाँ पे देख रहे हो आप डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप, जैसे जैसे ईयर बाय ईयर टाइम इंक्रीज हो रहा है, आपका डिजिटल मार्केटिंग वहाँ पे आएगा. ठीक है, सो वी विल एक्चुअली सी द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल. तो वहाँ से हमारा क्लियर हो जाएगा कि बेनिफिट हमारा क्या है. बट नाउ वी विल टॉक अबाउट कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या. We do the marketing same as traditional marketing, but doing the marketing techniques or the strategies will change, platforms will change, right. So when we do marketing or when we promote our goods or services, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट है हम उसको ही मार्केट कर रहे हैं. If we want to promote some services, like if I have my digital marketing agency, and what I want to promote my services, the digital marketing services that my company provide. For that I can also use the digital marketing strategies. Okay, so when you use the strategies or the digital platforms, actually digital channels, to promote your goods or services, that is the digital marketing. Simple. So in simple term, जब हम मार्केटिंग कर रहे हैं अपने गुड्स की, सर्विसेज की, यूजिंग डिजिटल चैनल्स, that is our digital marketing. Now the concept in my mind, whether if we have any company or any services product, that only we can do digital marketing, not for our personal branding. No, it's not true. You can do digital marketing for your personal branding also. uh, what I mean regarding that personal branding, like if you are in other profession, you are a doctor, you are a trainer, or you provide the coaching classes to student, to 12th class, 10th class students, right. You are into something other profession, and you want to promote yourself so that you can get more and more business. ओके, तो उसके लिए भी हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं. इफ आई गिव यू द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट, द पर्सनल ब्रांडिंग is like if someone is going to Google and typing, looking for, suppose if someone is looking for the digital marketing trainer near Janakpuri areas. Okay, so if someone is typing the keyword over here, this is our keyword. Okay, so try to understand that related for users, it is query.
अगर मैं एज अ यूजर, जैसे मेरी अभी माइंड में एक क्वेरी आई दैट नाउ लॉकडाउन इज गोइंग ऑन बट आई वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, सो मे बी आई विल लुक फॉर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या फिर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इफ आई एम लुकिंग फॉर इंस्टीट्यूट और सेंटर, राइट? इफ आई एम लुकिंग फॉर द person trainer who can teach me personally, okay, who can take my classes personally, so what I'll type digital marketing trainer, okay. So when someone is searching for digital marketing trainer on Google, so what they will get, they will get my profile over here ranking on the keyword digital marketing trainer, ओके। सो यहाँ पे आप देख लो मेरी कोई कंपनी नहीं है, आई एम द इंडिविजुअल, आई हैव माई पर्सनल ब्रांड, आई एम लाइक अ इन्फ्लुएंसर और not, I will not say influencer over here because influencer is something different, I'll talk about this later, but if I talk about my personal branding, अगर individually कोई search करेगा, what they can see my profile over here ranking on the top, so these are local results, right? so ये digital marketing से हुआ basically। अगर मैं यहाँ पे suppose किसी को अपना business grow कराना है and they are looking for business growth consultant, so you can see that some profiles are ranking over here, okay, जिन्होंने अपना business growth consultant के लिए rank basically करा रखा है, okay। if someone is looking for trainer and consultant, then again some results will come। तो यहाँ पे आप पर्सनल ब्रांड के लिए भी, मतलब खुद अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए भी आप अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग करते हो, ओके। सो इट इज नॉट लाइक कि बिजनेस की ही आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे, आपका जो भी प्रोफेशन है, जो भी आपका पैशन है, आप उसको फॉलो कर सकते हो और उसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज जो है, टेक्निक्स जो है, अगर वो आपको आती हैं तो यू कैन ग्रो योर सेल्फ ऑल्सो, right? If I'm looking for institute, right? So if I type best digital marketing course, so अब यहाँ पे मुझे जो इंस्टीट्यूट्स होंगे वो दिखेंगे। सी अवर CQS is ranking on the best digital marketing course in दिल्ली, इन आपके जनकपुरी के आसपास के एरिया में, यहाँ पे जितने भी 15-20 किलोमीटर्स की रेंज में, इफ समवन इज लुकिंग फॉर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, दे कैन सी अवर CQS प्रोफाइल, ओके। सो ये बेसिकली क्या है, इतना ज़्यादा आप देख रहे हो पावरफुल डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं कि आप अगर, क्योंकि मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, सर्च इंजन्स पे आ रहे हैं, मतलब गूगल पे सर्च करने के लिए, राइट, सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, तो जो आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अगर आपकी प्रोफाइल दिखती है, वेदर इट्स योर बिजनेस प्रोफाइल और पर्सनल प्रोफाइल, तो वो आपके लिए कितना ज़्यादा बिजनेस जनरेट कर सकती है, ये आप यहाँ से समझ सकते हो, राइट। सो टू अप्लाई द right strategy and the technique of promoting good services or the personal brand using digital channels, वही आपका क्या हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ओके। अब हम बात करेंगे डिजिटल चैनल्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। लाइक डिजिटल चैनल कैन बी एनीथिंग दैट आर ऑन इंटरनेट, जैसे कि हमारा गूगल, ठीक है। गूगल क्या है, हमारा नंबर 1 सर्च इंजन रिजल्ट है इन द वर्ल्ड, ओके। सो दिस इज अवर गूगल। अब देखो सर्च इंजन की मैं बात कर रही हूँ, सर्च इंजन नाम से पता चल रहा है, सर्च मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे जाके हम कोई चीज सर्च कर रहे हैं, तो वो विंग हो सकता है, याहू हो सकता है, हमारा यूट्यूब हो सकता है, गूगल हो सकता है, ठीक है। वी हैव लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स जिन पे जाके हम सर्च कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे आपने देखा गूगल को मैंने क्या दिया, सर्च इंजन, ताकि मैंने गूगल पे जाके सर्च की, एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया गूगल क्या है, इट इज द नंबर 1 सर्च इंजन इन द वर्ल्ड जिस पे आपकी सर्चेस ज्यादा होती हैं, राइट। एंड व्हाट इज द सेकंड वन, एनी आइडिया, सेकंड नंबर ऑफ सर्च इंजन आपका इन द वर्ल्ड आफ्टर गूगल, Kanya, any idea, do you have? विकिपीडिया। नो, इट इज अ पार्ट ऑफ गूगल एक्चुअली, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सर्च करें तो हमें विकिपीडिया के भी रिजल्ट्स मिलेंगे। यूट्यूब। Yes, right. Second is our YouTube. And I am really
इसमें थोड़ा-सा शॉकिंग ये भी है कि हो सकता है आने वाले टाइम में हमारा यूट्यूब नंबर 1 सर्च इंजन बन जाए रिज़ल्ट के लिए। क्योंकि आपने देखा है वीडियो की डिमांड आज के टाइम में बढ़ती जा रही है ना? अगर हमारे सामने कोई एक कंटेंट टेक्स्ट का कोई रखे, सेकंड इज़ लाइक हमारी इमेज कोई भी है, विज़ुअल जो ग्राफिक्स है वो है, एक हमारा वीडियो है। तो व्हाट वी विल प्रेफर कि हम वीडियो को देखेंगे, है ना? टिकटॉक क्यों फेमस हुआ इतना ज़्यादा? क्योंकि वीडियो कंटेंट था, शॉर्ट वीडियोस का कंटेंट था। इंस्टाग्राम ने इसका कितने अच्छे से यूज़ किया। जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ, इंस्टाग्राम ने अपनी रील्स निकाल दी, राइट, शॉर्ट वीडियोस। एंड यूट्यूब ने भी अपना क्या कर दिया, शॉर्ट्स शुरू कर दिए। यूट्यूब शॉर्ट्स आप देखते होगे, वीडियो शॉर्ट्स जो आपको दिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे वीडियो कंटेंट का जो अभी इस लास्ट ईयर से जो बूम पे है वो बहुत ज़्यादा है। वीडियो कंटेंट अगर आप बनाते हो तो देखा गया है हर एक प्लेटफॉर्म में ये एनालिटिक्स कि आपका जो एंगेजमेंट है, लोग जो एंगेज होंगे पोस्ट के साथ वो ज़्यादा होंगे वीडियो कंटेंट से, राइट। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वीडियो यूट्यूब जो है वो आपका धीरे धीरे जो प्लेस है कहीं गूगल की ना ले ले, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। गूगल अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड है। गूगल देखो क्यों फर्स्ट नंबर पे है, मैं आपको एक रीज़न बताऊँ। गूगल हमेशा प्रायोरिटी देता है अपने यूजर्स को। वो वही डेटा दिखाता है अपने यूजर को जो यूजर के लिए सबसे बेस्ट है, राइट। बेस्ट रिजल्ट्स यहाँ पे दिखाएगा। और हमेशा जब कोई भी प्लेटफॉर्म अपने यूजर की प्रायोरिटीज को ध्यान में दे रखता है और उनको वो रिजल्ट्स दिखाता है जो यूजर्स के लिए बेनिफिशियल है, तो हमेशा वो प्लेटफॉर्म आगे रहता है। तो गूगल भी वही करता है। गूगल ने इवन सारे रिजल्ट्स कवर करता है। ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी धीरे धीरे कौन कौन से रिजल्ट्स होते हैं, क्या है। तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ यूट्यूब के वीडियोस भी दिखाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेरी, बट इस क्वेरी के बेसिस पे अभी कोई वीडियो यहाँ पे नहीं है। बट व्हेन आई सर्च फॉर डिजिटल मार्केटिंग, लेट मी सी, इस पे ये दिखाएगा नहीं। ओनली आई एम टाइपिंग डिजिटल मार्केटिंग, सो हियर यू कैन सी मे बी हमें कुछ रिजल्ट्स मिल जाएं वीडियोस के। नॉट राइट नाउ, बट अभी हम और क्वेरीज देखेंगे, उनमें हो सकता है हमें यूट्यूब की जो वीडियो के रिजल्ट है वो भी हमें गूगल के फर्स्ट पेज पे दिखते हैं, राइट। सो यहाँ पे आपने देखा कि गूगल जो है सर्च इंजन हमारा, वहाँ पे हमें एग्जैक्ट जो हम चाहते हैं वो रिजल्ट्स दिख रहे हैं। हमारे यूजर्स की प्रायोरिटी को गूगल फर्स्ट पे रख रहा है। दैट्स वाई इट इज़ ऑन द नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन सर्च इंजन्स, राइट। याहू है, विंग है, इवन देखो अमेजोन है। अमेजोन हो गया, स्विगी है, जोमेटो है, फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट्स हो गई, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स होगी। दीज आर ऑल्सो सर्च इंजन्स, क्योंकि इन पे भी तो जाके हम सर्च करते हैं, राइट। द थिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर वी सर्च ऑन दैट प्लेटफॉर्म, राइट। तो ये भी हमारे क्या होंगे, सर्च इंजन्स हो गए। अगर मान लो हम कोई ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पे जाके अगर इफ समवन इज लुकिंग फॉर सम जॉब और वो जॉब से रिलेटेड को सर्च करता है एंड दे आर गेटिंग द रिजल्ट्स जॉब रिलेटेड टू जॉब्स, राइट, तो वो हमारी वेबसाइट भी क्या होगी, एक सर्च इंजन बन जाएगी। बट इट इज़ अप टू यू एट व्हाट लेवल यू वांट टू क्रिएट योर वेबसाइट वो सर्च इंजन्स के लिए, राइट। सो अब हम डिजिटल चैनल्स की जैसे हमने बात की, तो डिजिटल चैनल्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं। सो सी, जो हमारे दो सबसे मेन चैनल्स होते हैं हमारे डिजिटल चैनल्स, दीज आर टू। फर्स्ट इज योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि ज़्यादातर जो मार्केटिंग लोग करते हैं, मतलब डिजिटल मार्केटिंग जो करते हैं, वो दो प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं ज़्यादा। फर्स्ट इज योर सोशल मीडिया, ठीक है, जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक है, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, राइट, टेलीग्राम इज देयर आर सो मैनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ओके, डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द बिजनेस कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है, उसके लिए आपको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है। लाइक इफ वी हैव our profile, sequence profiles on Instagram as well, on LinkedIn, on Facebook, on Twitter also. But on Twitter, if I talk about Twitter, you know, there should be latest news, है ना। ट्वीट्स जो होंगी वो आपके बहुत ट्रेंडिंग सर्चेस से रिलेटेड होनी चाहिए। बट वी आर इनटू एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम ट्रेंडिंग सर्चेस वही डाल सकते हैं, आई मीन ट्वीट्स वही कर सकते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड अभी बेसिकली जो रिसेंट सर्चेस चल रही होंगी,
राइट। तो वो हमें थोड़ा कंटेंट जब हम बनाते हैं, जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ेंगे उस टाइम पे हम उसको देखेंगे कि जब हम कंटेंट बनाएंगे अकॉर्डिंग टू अवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, राइट, कंटेंट कैलेंडर बनाते हैं तो उसमें पूरा ये एनालिसिस करते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे हमारा कौन सा टाइप का कंटेंट जाना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा आपका प्लेटफॉर्म, चैनल्स, डिजिटल चैनल। सेकंड इज योर सर्च इंजन, जो हमने बात की, गूगल है हमारा, यूट्यूब है, बिंग, याहू, जो भी है हमारे, वो सर्च इंजन हो जाएंगे। देन वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशंस, राइट। तो हमारी वेब मतलब वेबसाइट्स, जो हम वेबसाइट यूज कर रहे हैं उसको भी तो हम अपने एज अ बिजनेस पर्पज से यूज कर सकते हैं, right? So we have our CQS website that we can use for your business, our business. Like if we are putting any post on Facebook, okay, like I am creating a post for Facebook, and in that Facebook I mentioned, see, let me show you one example. CQS पेज में आपको एक बार दिखाती हूँ। यहाँ पे इफ आई गिव यू द एग्जांपल, एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द, ये तो मैंने आई थिंक आपके ग्रुप में भी सेंड किया था, दिस इज वन ऑफ अवर student who is taking classes. She is IELTS trainer actually, corporate trainer. Okay, so earlier I used to see here it is one of the digital marketing. So like if I'm putting this post and in the last if I say if you want to enroll in this course you can visit our website, and वहाँ पे मैंने website का अपना URL दे दिया, and in that website make sure you should have the lead form, राइट। जहाँ पे जाके या तो कोई अपनी डिटेल्स आपको दे, ओके, या तो डिटेल्स दे वो आपको, या फिर क्या करे वहीं से डायरेक्ट पेमेंट आपको कर पाए, okay. So basically what you want to generate business, you want to generate lead for your company, okay. So this is one of our page for digital marketing course. So you can analyze here, I have used this website for the business purpose, digital marketing course के purpose से, right? So here what I did, I put a form, right, with the for collecting some information for candidate information like name, email ID, phone number, and once they fill their details, then they can download our brochure. Okay, again basically this is the lead page. I will let you know what lead page is. It is not proper website, you can see no other pages link over here, okay. You can't see any sidebar over here, you can't see any footer in the end, okay. So I have just created it for the lead purpose. So you can see whenever you see this page, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही कॉल टू एक्शन मिलेगा, मतलब एक ही यूजर सिर्फ एक्शन ले पाएगा, या तो वो डिटेल्स पढ़ के सिर्फ डाउनलोड ब्रोशर ही कर सकता है, बस दैट्स इट। और कुछ मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें नहीं रखी, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ इंटेंशनली कि मेरा यूजर सिर्फ क्या करे, ब्रोशर को ही डाउनलोड करे, क्योंकि मेरा पर्पस है यहाँ पे कि मैं सिर्फ लीड कलेक्ट करूँ, okay. So whenever if someone is trying to get brochure, they first need to give me their details so that I can get their information and I can follow them back for the business, ओके। सो ये बेसिकली क्या है, आपका एक वेबसाइट के थ्रू आप कैसे अर्निंग करोगे, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स बट दिस इज वन ऑफ देम। तो यहाँ पे अगर आप देखो मैंने क्या किया, एक वेबसाइट की हेल्प से मैंने अपने डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में वेबसाइट को भी इंक्लूड किया। लाइकवाइज वी कैन हैव मोबाइल एप्लीकेशन, ओके। अगर आपका कोई मोबाइल एप्लीकेशन है तो उसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, लाइक जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मेरी वेबसाइट पे कोई आया, उसने अपनी डिटेल्स को फिल किया एंड आई गेट देयर डिटेल्स, और फिर मैं उनको क्या करूँगी, अपने ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की हेल्प से मैं उनको एक एंगेजमेंट बना के रखूंगी अपने ऑडियंस के साथ, ठीक है। उनको कई बार मैं कुछ फ्री में टूल्स एक्सेस करने के लिए दे दूंगी, कई बार मैं उनको एक दो लेसन्स फ्री में करा दूंगी, और व्हेन यू प्रोवाइड सम वैल्यू एडिशन टू योर कस्टमर्स, वन डे दे विल परचेज फ्रॉम यू, राइट, वन डे दे विल बाय योर प्रोडक्ट्स। तो ऐसा नहीं है कि आप अभी अभी मेरे फनल में आए हो, ठीक है। सेल्स फनल बेसिकली हमारे बनते हैं, आई नो थोड़ा सा टर्म्स आपको टेक्निकल लग रहे होंगे कुछ टर्म्स, बट हम डिटेल में बात करेंगे, आप उसकी टेंशन अभी नहीं लो यहाँ पे,
ठीक है, आपको बस इतना समझना है कि हम किन किन चैनल्स का यूज कर सकते हैं, राइट। तो डिजिटल ईमेल मार्केटिंग की हेल्प से मैं अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके साथ क्या कर सकती हूँ, एंगेजमेंट बना के रख सकती हूँ, उनको मैं रिटेन करके रख सकती हूँ, राइट। बिकॉज इट इज अ फैक्ट, अगर आपको एक नया यूजर, नया कस्टमर या क्लाइंट या वट एवर द टर्म जो भी आपकी बिजनेस का है उसमें जो भी आप बोलते हो, क्लाइंट कस्टमर जो भी रहता है, अगर आपको उसको अक्वायर करते हो नए कस्टमर को, तो उसकी कॉस्ट आपकी बिजनेस को हमेशा ज़्यादा पड़ेगी, इंस्टेड ऑफ कि जो आपका एग्जिस्टिंग यूज़र है उसको आप रिटेन करके रख रहे हो, राइट। तो ये लॉजिक्स होते हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं, फनल्स जब आप बनाते हो तो किस तरह से आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको भी आपको रखना है। तो वन ऑफ देम इज ईमेल मार्केटिंग, कि आप उनको ईमेल्स भेजते रहो, आप उनको टाइम टू टाइम कुछ डिस्काउंट ऑफर्स भेजते रहो। आप भी देखते हो कई बार, जैसे हम ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, कुछ परचेज करते हैं, तो हमें उनसे ईमेल्स आती रहती हैं जब भी कोई उनका नया ऑफर आएगा, जब भी वो कोई हमें स्पेशल डिस्काउंट देंगे, राइट। उनके कोई फेस्टिवल ऑफर्स आ रहे हैं, वट एवर इट इज, सीजनल सेल्स है, राइट। तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कस्टमर के साथ एंगेज करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ईमेल्स के थ्रू, वेबसाइट्स हो गया, या कोई भी आप डिजिटल चैनल ले रहे हो फॉर द मार्केटिंग पर्पस, तो वो आपका डिजिटल चैनल्स में आ जाता है, दैट इज द डिजिटल मार्केटिंग। सो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, what digital marketing is, when we use digital channels to promote our services, goods, personal branding, or for the campaign purpose, for targeting our audience, right audience, okay, that is the digital marketing। ठीक है, यहाँ तक डाउट किसी को कोई भी पॉइंट में कुछ भी क्वेरी है, क्वेश्चन है? We all good. ऑल गुड, गान्या? No, ma'am. ओके, परफेक्ट, राइट। तो ये हो गया बेसिकली व्हाट डिजिटल मार्केटिंग इज एंड व्हाट आर द डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स। नाउ अब माइंड में ये क्वेश्चन आता है, जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं पढ़ना या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स हम करते हैं, तो हमारे माइंड में ये चीज़ आती है, ओके व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इट, कुछ स्कोप है भी कि नहीं फ्यूचर में। क्योंकि हम अब कॉलेज में नहीं है, वी आर नॉट इन कॉलेज, वी आर नॉट इन स्कूल, के हमारा जो करिकुलम में है हमें वही पढ़ना है, नहीं हमें जो चीज़ हमारा समझ नहीं आ रही वो भी हमें ज़बरदस्ती समझना है, नो। पहले आपके माइंड में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि बेसिकली आप डिजिटल मार्केटिंग अगर कर रहे हो तो इसका स्कोप क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है, वाई डिजिटल मार्केटिंग, क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है। ठीक है, तो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं कि कैसे हम ये माइंड में हमारा जो कंफ्यूजन है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में वो हम कैसे क्लियर करेंगे, राइट। सो इफ आई टॉक अबाउट कि why you should learn digital marketing, what are the things that bring your focus to the digital marketing, वो ये है। अगर आप पहला पॉइंट देखो यहाँ पे, yes it is right that it is predicted there are more than 20 lakh jobs nowadays in digital marketing। ठीक है, अगर ये फैक्ट आप naukri.com हो गया, लिंक्डइन हो गया, या जो भी हमारे जॉब पोर्टल्स हैं उनसे अगर आप उठाओगे, तो आप देखना इस जो पैंडेमिक में, मतलब 2020 में, 2020 से जो अभी ये जो चल रहा है, इसमें आपका जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो डिजिटल मार्केटर्स की डिमांड बढ़ी है। क्योंकि देखो छोटे से छोटा बिजनेस भी डिजिटली स्विच हुआ, राइट। अभी पैंडेमिक में ऑफलाइन चीज़ें सब बंद हो गई, ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन बिजनेसेस, ठीक है, ऑफलाइन विजिट्स होना बंद हो गई, लोगों के जो बिजनेस थे वहाँ पे ऑनलाइन सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया, एवरीथिंग ट्रांसफॉर्म्ड ऑनलाइन, ओके। तो वहाँ पे बिजनेस को किसकी ज़रूरत पड़ी, डिजिटल मार्केटर्स की, कि उनके बिजनेस को एक राइट स्ट्रैटेजी अप्लाई करके वो ऑनलाइन ले जाए, या फिर जिनके बिजनेस थे उनको भी अगर आप देखो तो उन्होंने डिजिटली स्विच किया, ओके। तो उस टाइम पे अगर जिनको डिजिटल मार्केटिंग आती थी उन्होंने तो अपना कर लिया, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग सपोज जिसकी रिक्वायरमेंट थी डिजिटल मार्केटर्स की, तो वहाँ पे हायरिंग लेवल जो था बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया 2020 से ही, डिजिटल मार्केटर्स का जब से पैंडेमिक आया, ओके। एक ग्राफ के थ्रू भी हम इसको समझेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे देखो कि ये प्रिडिक्टेड है कि आपका मोर देन 20 लाख जॉब्स हैं, right, and industry projected to grow at 32% CAGR। आप देख रहे हो कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट जो है
इस इंडस्ट्री का, डिजिटल मार्केटिंग का, वो 32% है। एंड दिस इज रियली ह्यूज, बहुत ज़्यादा स्कोप है। 32% सिर्फ इसी इंडस्ट्री का है। किसी और इंडस्ट्री का अगर आप देखो, आईटी का देख लो, या फिर कोई और इंडस्ट्री का अगर आप देखोगे, बैंकिंग का, या जो भी आप देखते हो, सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ इंडस्ट्री में जो कंपाउंड एनुअली जो ग्रोथ रेट है वो डिजिटल मार्केटिंग का है, क्योंकि डिजिटली प्रमोशन हो रहा है। इंडस्ट्री जो कंपनी है अगर आप देखो, तो वो यूज़ कर रही है जो अपना इन्वेस्टमेंट, जो बजट बेसिकली कंपनी निकालती है शुरू में, दैट इज़ 24% उनका एंटायर स्पेंड जो भी आप करते हैं। मान लो अगर कोई कंपनी कर रही है 50% या 40% मान लो स्पेंड निकाल रही है अपनी जो कंपनी का एक्सपेंडिचर है उसके लिए, उसमें जो इन्वेस्टमेंट है बेसिकली, या एक्सपेंडिचर मैं कह लूँ, उसमें आप देखो 24% कंपनी खर्च कर रही है डिजिटली अपने आप को प्रमोट करने के लिए अभी 2021 में। तो यहाँ से आप देख रहे हो कितना ज़्यादा बूम पर ये सेक्टर है कि लोगों को सच में अब डिमांड जो है डिजिटल मार्केटिंग की वो रियलाइज होने लगी है। ओके एंड यहाँ मैं बात करूँ, देयर इज अ स्कोप ऑफ फॉर फ्रेशर्स की। अगर मैं बात करूँ जॉब के रिगार्डिंग, अगर पर्पज से जॉब करनी है तो वहाँ पे फ्रेशर्स के लिए इट्स मोर देन एवरेज जो पैकेज रहता है वो 3 लाख का रहता है, दैट इज समथिंग अराउंड 25,000 पर मंथ और फ्रेशर्स के लिए जो है स्कोप। बट आप शॉक्ड में हो गए, आप मुझे जब आप कोर्स कंप्लीट करोगे तो आपको लगेगा कि जॉब तो करनी ही नहीं है, फ्रीलांसिंग में इतना पैसा है तो जॉब क्यों करें, राइट? देखना बहुत ज़्यादा इसमें आपको फ्रीलांसिंग जब आप देखोगे ना, तो आप खुद अर्निंग साइड जो इनकम मैं बता रही हूँ आपको, एक्स्ट्रा इनकम वो आप कर सकते हो, दैट इज थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग एंड ब्लॉगिंग। बहुत ज़्यादा बूम पर है आपका ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, तो इसकी मैं बात करूंगी अभी, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या है। ठीक है, सो अभी बस ये कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखो, आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। देयर आर सो मैनी सोर्सेज जिनकी हम बात करेंगे एक्स्ट्रा इनकम के लिए, राइट? देन इट इज़ बूमिंग $1 बिलियन इंडस्ट्री। बिल्कुल हमने आगे पहले बात कर रखी है कि बिल्कुल डॉलर इंडस्ट्री है, $1 बिलियन इंडस्ट्री। एंड इट इज़ वन ऑफ द टॉप 10 हाई इनकम स्किल्स। बिल्कुल स्किल्स में से है आपकी। अगर मैं बात करूँ डिजिटल मार्केटर्स की जो सैलरी की, वो अगर और सेक्टर की मैं बात करूँ उसके कंपैरिजन में, डिजिटल मार्केटर्स जो होते हैं उनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। जैसे डेटा साइंटिस्ट हो गए, उनकी सैलरी अच्छी होती है। डेटा एनालिटिक्स हो गए, उनके कंपैरिजन का लेवल अगर मैं करूँ डिजिटल मार्केटिंग का, तो वो सेम जाता है आपका, राइट? डिजिटल मार्केटर्स और आपके इवन ग्राफिक डिजाइनर्स की मैं बात करूँ तो ग्राफिक डिजाइनर्स हो गया, डिजिटल मार्केटर्स हो गए, डेटा साइंटिस्ट है आपका, एंड आपका डेटा एनालिटिक्स अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो, राइट? तो ये आपकी टॉप हाई स्किल्स, इनकम स्किल्स मानी जाती हैं। एंड आपके पास बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये आपको जब मैं मॉड्यूल अभी बताऊंगी कौन कौन से मॉड्यूल हम पढ़ेंगे, उसमें आपको ये क्लियर होगा कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज सच में अनलिमिटेड है। इसमें बहुत सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके, जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। ठीक है, सो ये बेसिकली आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे माइंड में एक विजन जो है वो क्लियर हो गया कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्यों इतना बूम पे है, राइट? अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो देखो यहाँ पे सिंपल सा मैंने एक कंपैरिजन ले रखा है बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग में, जो कि पिक्चर से ही देखो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है। दैट इज़ लाइक अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो आप देख रहे हो यहाँ पे न्यूज़पेपर, रेडियो, आपके कुछ मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर है, राइट? एंड आपके पॉडकास्ट, नॉट पॉडकास्ट, दैट इज़ मेल, जो हम पोस्ट कार्ड होते थे, पोस्ट कार्ड पहले चला करते थे, ठीक है? पोस्ट कार्ड्स वगैरह हो गया, आउटडोर मार्केटिंग हो गया, होर्डिंग्स हो गया, राइट? बिलबोर्ड्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। एंड नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे जो हमने डिजिटल चैनल्स की बात की, राइट? हमारा ईमेल मार्केटिंग, वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गया, सर्च इंजन्स हो गया, तो और आपके ऑनलाइन वेबिनार्स हो गए, ऑनलाइन वर्कशॉप्स हो गई। तो ये काफ़ी चीज़ें आपकी बूम पर हैं डिजिटल में। ओके, बट इसका ये तो चलो ठीक है, मैंने ये बता दिया कि आप मीडियम क्या क्या है। जैसे ट्रेडिशनल मीडियम ये है और डिजिटल मीडियम हमारे ये है, मतलब प्लेटफॉर्म्स जो हमारे डिजिटल चैनल्स की मैं बात कर लूँ, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के चैनल्स ये हो गए, डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स ये हो गए। बट व्हाट इज द बेनिफिट? अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि बेनिफिट क्या है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। आप देखो यहाँ पे मैंने, ये आप देख सकते हो, प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट, ठीक है, डायरेक्ट मेल हो गया,
आप टेलीफोन मार्केटिंग बहुत होता था, टेली मार्केटिंग पहले, जैसे मान लो आपके पास फ़ोन वगैरह पहले काफ़ी आते रहे होंगे, बट इस टाइम पे ज़्यादा फ़ोन आपके पास नहीं आते, जो जिससे आप अननोन हो, वो बेसिकली इतने फ़ोन आपके पास अब नहीं आते हैं कोई चीज़ सेल करने के लिए, क्योंकि दैट आर ऑल ऑब्सलीट। कोई भी ऐसा पर्सन को आप फ़ोन डायरेक्ट अब नहीं कर सकते हो जिसको आप नहीं जानते हो, या फिर जो ऑलरेडी एक बार आपके कॉन्टेक्ट में नहीं आ रखा है, उसको आप फ़ोन करोगे तो दे विल हार्डली लिसन टू यू। ठीक है, तो ये चीज़ें अब नहीं होती। इसके इंस्टेड हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। तो आप देख रहे हो ये सारे चैनल्स जो हैं हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। दीज आर सम अदर चैनल्स ऑल्सो। इनबाउंड मार्केटिंग है हमारा, मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या है, तो मॉड्यूल्स में ये मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, बट जो मेन है वो हमने कवर ऑलरेडी कर रखा है। नाउ बेनिफिट्स। अब देखो बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो हायर रेवेन्यूज जनरेट होता है डिजिटल मार्केटिंग में, कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से, पीपल का ट्रस्ट बनता है, आपकी ब्रांड की रेपुटेशन बनती है, लोग आपको जानने लगते हैं। ठीक है, एक बार आपका मान लो किसी ने एक एक आप या डेमो कल का आप रख दो, 10 बजे रख दो मॉर्निंग में। ओके राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो ब्रांड रेपुटेशन आपका बन रहा है, क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंस है, और ऑनलाइन प्रेजेंस अगर आप देखो तो मान लो एक बार मेरे कोई पोस्ट मेरा किसी ने देखा, किसी की फीड में मान लो मेरा सीक्यूएस का पोस्ट आया, राइट, दे विल फॉलो मी, दे विल लाइक माय पेज, और जो भी उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, दे कैन डायरेक्टली चेक माय पोस्ट, और मेरा कंटेंट जो भी है दे कैन डायरेक्टली बेनिफिट फ्रॉम देयर, राइट। तो ये क्या है, एक पर्सनल सॉरी एक जो आपकी डिजिटल प्रेजेंस है, बेसिकली जो रेपुटेशन है ऑनलाइन, वो यहाँ कस्टमर के दिमाग में बन रही है, राइट। सो due to this, you know, right now we are getting so many international clients also, international businesses for our CQS, just because of our social media presence, our Google presence. If someone is searching for best digital marketing course, I think we are also ranking on Python course. Let me just type. So if someone is looking for the Python course, they can also see our, you see यहाँ पे हमारा business है वो यहाँ पे rank कर रहा है first पे सी। I think we are also ranking some more keywords like graphic designing and all. ठीक है, so this is due to digital marketing. अब मुझे बताओ, यहाँ पे आपको एक क्लियर चीज दिखाई दे रही है, अगर डिजिटल मार्केटिंग अगर इस तरह से आप किसी बिजनेस को रैंक करा के दोगे तो वो क्यों नहीं कराएगा अपने बिजनेस का डिजिटल मार्केटिंग, राइट। एसईओ के बेसिस से होता है बेसिकली। सो ये तो हमारा बात की बात है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टली आपको कोई भी कॉल करके कोई भी आपकी वेबसाइट विजिट कर सकता है, डायरेक्शन के लिए आपको देख सकता है, यू कैन दे कैन सर्च फॉर योर डायरेक्शन एज वेल, राइट। सो ये बेसिकली क्या है, ये एक्चुअल है जो बिजनेस को चाहिए, क्योंकि अपनी बिजनेस का जो विजिबिलिटी है वो आजकल इंक्रीज करानी है, राइट। तो इसका भी हम एक एग्जांपल लेंगे, डोंट वरी, तब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। देन हम देखो लीड जनरेशन कर सकते हैं, ठीक है, अपना जो कंटेंट है हमारा राइट कंटेंट हम राइट प्लेटफॉर्म पर शो करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी बिजनेस के लिए एक पोटेंशियल जो लीड है वो ला सकते हैं। ठीक है, फॉर CQS वी ऑल्सो डू द लीड जनरेशन फॉर डिफरेंट कोर्सेज, ओके, फॉर पाइथन, डिजिटल मार्केटिंग, फॉर अदर products also. So we do the lead generation, we get the potential customer, we get the potential student, then जो हमारी सेल्स टीम का काम है वो शुरू बेसिकली होता है, राइट। तो आपको एक इंटरेस्टेड क्लाइंट मिल रहा है जिसको आपको कन्वर्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट। सो एवरी बिजनेस वांट्स लीड नाउअडेज, पोटेंशियल लीड्स, तो दैट इज इन द हैंड ऑफ डिजिटल मार्केटर्स, तो वो कर सकते हैं, राइट। यू कैन कम्पीट विद योर कॉम्पिटिटर्स, यस। यहाँ पे देखो, अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करूँ तो वहां पे आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में मैं अपना कॉम्पिटिटर ढूंढ सकती हूँ कि मुझसे बेस्ट ये कर रहा है तो इसने ऐसा क्या किया है जो मैंने नहीं किया, राइट। मैं अपनी स्ट्रैटेजीज इंप्रूव कर सकती हूँ, स्ट्रैटेजीज रिफाइन कर सकती हूँ, मार्केट रिसर्च आप कर सकते हो,
सब कुछ आप वहाँ पे देख के कि आपका कॉम्पिटिटर बेसिकली किस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है जो आप नहीं कर रहे हो, आपका बिजनेस करना चाहिए उस कीवर्ड पे रैंक क्यों नहीं आप कर पा रहे हो, एवरीथिंग यू कैन टेक ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ योर कॉम्पिटिटर की, उसकी वेबसाइट क्या है, वो क्या क्या टूल्स यूज कर रहा है बेसिकली, उसके कॉम्पिटिटर कहाँ कहाँ है, या फिर मेरे कॉम्पिटिटर के लोग जहां जहां जा रहे हैं, मतलब जिस YouTube चैनल को वो देख रहे हैं, जिस वेबसाइट पे वो विजिट कर रहे हैं, मैं इवन उनको भी टारगेट करके अपना एड उनको दिखा सकती हूँ, राइट। सो दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे बेस्ट थिंग, हम अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं, एंड द इम्पोर्टेंट थिंग, हम रियल टाइम मेजरमेंट कर सकते हैं रिजल्ट्स का, लाइक हाउ मेनी पर्सन आर कमिंग टू माई वेबसाइट, what are the actions they are taking, on which page they are active right now, what is the source through which they are coming, जैसे फेसबुक से आ रहे हैं या कोई अदर प्रोफाइल से आ रहे हैं, या मेरी वेबसाइट पे डायरेक्ट वो वेबसाइट का नेम डाल के आ रहे हैं या कीवर्ड के थ्रू आ रहे हैं, सब कुछ। देयर आर 100+ टूल्स इन डिजिटल मार्केटिंग जो कि हम सीखते हैं, उन टूल्स की हेल्प से हम अपना काम बहुत ईजी बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बेनिफिट्स कितने ज्यादा हैं। ओके, अगर मैं ये सारे बेनिफिट्स आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ होर्डिंग। जैसे मुझे एक होर्डिंग है या बिलबोर्ड आप लेके चल लो, मुझे एक बिलबोर्ड या होर्डिंग या फिर स्टैंडी है बाहर मुझे अपने इंस्टीट्यूट के लगानी है, जैसे CQS के बाहर मुझे एक होर्डिंग है, ठीक है, स्टैंडी लेके चलते, स्टैंडी लगानी है, राइट। अब नाउ अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग लेती हूँ, पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक उस स्टैंडी को लगाने के लिए पहले मुझे उसका कंटेंट लिखना पड़ेगा, ओके, मे बी आई नीड कंटेंट राइटर्स, बट डिजिटल मार्केटर्स आर गुड एनफ टू राइट एड कॉपी और जो भी उनका रहता है, तो इतना आता है उनको कि वो लिख लेते हैं। इवन आई यूज टू क्रिएट द कंटेंट फॉर डिजिटल फॉर आवर CQS, ठीक है, जो भी हमारे पोस्टर्स जाते हैं, जो भी पोस्ट जाता है, तो आई यूज टू क्रिएट कंटेंट फॉर इट। तो इसमें इतना बिग डील नहीं है, क्योंकि एक बार जो वेबसाइट बनाता है, ब्लॉग्स लिखता है, तो उसको इतना आइडिया होता है कि क्या लिखना है क्या नहीं, ठीक है। बट देयर आर सम प्रोफेशनल कंटेंट राइटर्स जिनकी जरूरत पड़ती है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो करती हैं, राइट। तो मान लो कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ी, उसके बाद आपने उस स्टैंडी को आपको प्रिंट कराना है, तो कोई आप प्रिंट कंपनी देखोगे, ठीक है, वहां से उसको प्रिंट कराओगे, सो देयर इज अ कॉस्ट देयर, वहां पे कॉस्ट गया आपका। उसके बाद जहां पे भी स्टैंडी को लगाना है, स्टैंडी तो चलो हमारे ऑफिस के सामने ही लग जाएगी, देयर इज नो कॉस्ट, बट अगर मैं यही बात कर लूँ एक कोई होर्डिंग की, तो होर्डिंग जहां पे आपको लगानी है वहां पे पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, एंड फॉर हाउ मेनी डेज यू वांट टू कीप दैट होर्डिंग, तो वो भी आपको देखना है, राइट। उसके बाद उस होर्डिंग को लगाने के लिए यू नीड टू पुट द मैन पावर, ताकि वो वहां पे लगाए उस होर्डिंग को, ठीक है। अब होर्डिंग लगाने के बाद भी यू आर नॉट श्योर कि जो टारगेट ऑडियंस है आपका, जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हो, दे आर लुकिंग एट दैट और नॉट, राइट, ये भी आपको नहीं पता चल रहा, ठीक है। चलो मान लो लोगों ने देखा, लेकिन यू आर नॉट एबल टू मेजर द रियल टाइम रिजल्ट्स कि अभी कितने लोगों ने देख के आपको कॉल किया या आपको अभी कांटेक्ट किया, राइट। तो ये चीज आप मेजर नहीं कर पा रहे हो। लेकिन यही चीज मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, तो यहाँ देखो, जैसे मान लो मुझे एक होर्डिंग टाइप का या मुझे एक फ्लायर बनाना है, मैंने फ्लायर बनाया खुद मैंने अपने आप से ओन मैंने डिजाइन किया, क्योंकि डिजिटल मार्केटर्स आर गुड एनफ टू क्रिएट एनी पोस्ट। मैं आपको बता दूंगी, देयर आर सो मेनी टूल्स थ्रू विच यू कैन क्रिएट पोस्ट। अगर फोटोशॉप आता है, दैट इज वेल एंड गुड, गान्या नो दैट, आई थिंक गान्या इज लर्निंग फोटोशॉप फ्रॉम अस, तो फोटोशॉप आता है, दैट इज गुड। अगर नहीं भी आता तो देयर आर सो मेनी टूल्स दैट यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ फोटोशॉप, राइट। बट फॉर डिजिटल मार्केटर्स फोटोशॉप रियली एड सम बेनिफिट, बिल्कुल बेनिफिट ऐड करता है अगर आप फोटोशॉप भी आपको आता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने आप से ग्राफिक्स बनाया, तैयार किया, मेरे पास मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे बहुत सारी ऑडियंस है, अवेलेबल है, एक्टिव रहती है, राइट। मैंने क्या किया, उसको पोस्ट को डाल दिया, या फिर मैंने कैंपेन रन कर दिया। कैंपेन मतलब मैंने वहां पे एक अपनी ऑडियंस टारगेट की, जैसे वो कोर्स लॉन्च कर रही हूँ सपोज में, और दैट इज फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स ओनली। तो मैंने सिर्फ उन लोगों को ही टारगेट किया जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, किसी भी इंडस्ट्री में हो, एज ग्रुप उनका हो सपोज 21 से लेके 40 या 45, तो एज ग्रुप मैंने सिलेक्ट कर लिया।
जिस पर्टिकुलर लोकेशन के लोगों को मुझे दिखाना है तो मैं वो सिलेक्ट कर सकती हूँ। कौन से प्लेटफॉर्म पे जो लोग ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं मैं वहां उस एड को दिखा सकती हूँ, राइट। मैं रीटारगेट कर सकती हूँ ऑडियंस को, मतलब मेरी वेबसाइट पे अगर एक बार कोई विजिट कर गया तो उसको भी मेरा ऐड दिखेगा। ये चीज आपने देखी होगी कई बार। अगर मैं एग्जांपल दूं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स का, आप कई बार जाते हो, कुछ परचेज करते हो या कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करते हो, बट यू नॉट परचेज दैट, ठीक है, तो आपको ऐड दिखना शुरू हो जाते होंगे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के, कार्ड्स के, बहुत सारे आपको ऐड दिखेंगे। दैट इज थ्रू रीमार्केटिंग। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, एक्चुअली मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट, राइट। तो मैं रीमार्केटिंग कर सकती हूँ और अपना एड मैं उन लोगों को दिखा सकती हूँ। सो दैट इज थ्रू वन सिंगल पर्सन, कोई मैन पावर नहीं, कोई पेड प्रमोशन नहीं, नथिंग, राइट। यस, कैंपेन जब रन करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ कुछ आपके जो चार्जेस हैं वो आपको कुछ लगाना पड़ता है, कुछ अमाउंट लगाना पड़ता है, दैट विल टॉक अबाउट लेटर। तो इतना नहीं रहता, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग से, राइट। और वहां से आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, बिजनेस जनरेट कर रहे हो, अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। और वहां पे आप रियल टाइम मेजरमेंट भी ले सकते हो कि अभी इस टाइम पे ये पर्सन मेरी इस वेबसाइट पे आया था, यहाँ से इसने ये परचेज किया है, ओके, इस प्रोडक्ट को या ये वाली सर्विसेज के लिए अप्लाई किया है, या इसने अपनी डिटेल्स को फिल किया है, मतलब मुझे एक लीड मिली, ओके। सो आप क्या कर सकते हो, वहां से रियल टाइम मेजरमेंट जो है वो इजीली कर सकते हो। तो आप मुझे बताओ, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जो मेथड्स हैं वो ऑब्वियसली अब ऑब्सोलीट है, कोई भी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि हम डिजिटली स्विच होते चले जा रहे हैं, हमारे इंटरनेट यूजर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, वो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो यूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारा बिजनेस, अगर मैं डिजिटली स्विच करूं तो वहां से मुझे ऑब्वियसली मेरा बिजनेस ज़्यादा जनरेट होगा, मेरा रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा होगा, और रेवेन्यू जब ज़्यादा जनरेट होगा ऑब्वियसली बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है जी, ऑल गुड। कान्या, क्लियर है? ओके, फोटोशॉप में सो आगे एग्जैक्टली चलते हैं अब। सॉरी, Photoshop is exactly how different from routine photography. What is exactly सी Photoshop? फोटोशॉप इज Photoshop is actually a graphic designing tool. जैसे कि let me show you, if I want to create a poster, okay, so let me show you some posters that we created through Photoshop. तो Photoshop एक आपका tool है, it is a software on which we create our graphics. जैसे हमें graphics बनाना है अपनी किसी Facebook post के लिए, राइट। सो लेट मी शो यू जो हमारा फोटोशॉप से बेसिकली बना है, दिस इज द ग्राफिक दैट वी क्रिएटेड ऑन फोटोशॉप। तो ये जो ग्राफिक्स है बेसिकली ये हमने पोस्ट के लिए बनाया। Likewise, we can create some graphics for newspaper. We used to give the newspaper advertisement also of our CQS, तो उसके लिए हम Photoshop पे graphics बना सकते हैं। So this is actually a tool जहाँ पे आप अपने जो विजुअल कंटेंट है बेसिकली आपके इंस्टाग्राम के लिए, लिंक्डइन के लिए या फेसबुक के लिए, या आपकी वेबसाइट में जो बैनर्स बनते हैं, वेबसाइट में जो बैनर है, सपोज इसमें मैंने बैकग्राउंड में कोई बैनर लगा रखा है होता, तो इस बैनर को बनाने के लिए हमारा जो यूज हुआ है वो हुआ है हमारा फोटोशॉप का। लेट मी शो यू, एक्चुअली सर्वर इज डाउन राइट नाउ, आई थिंक सो इट दिस वेबसाइट इज नॉट ओपनिंग. Let me try to open it. Okay, server is down right now, but when you get time, please try to open sequestraining.com and you will get one banner. तो वहाँ पे जो banners हैं basically that is through the Photoshop. तो ये जो हमें ग्राफिक्स बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो बहुत ज़्यादा हमें फोटोशॉप की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ऑल्दो वी कैन यूज सम अदर टूल्स ऑल्सो, बट फोटोशॉप अगर आपको आता है तो ऑब्वियसली इट विल एड बेनिफिट. Okay, see, this is through the Photoshop actually, this graphic. Okay, and this graphic is also made by Photoshop. This is also. It's basically consolidating some pictures and text together. Text,
Yes, yes. When we consolidate some pictures, text, videos, Okay. GIF जो बनती है हमारी GIFs and all, तो ये हमारा Photoshop टूल होता है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं, right? So now let's come to the point. अब यहाँ पे ये हमारा बेनिफिट्स हो गया. नाउ फ्यूचर स्कोप क्या है? चलो ये तो हमने बेनिफिट समझ लिया. नाउ व्हाट इज द फ्यूचर स्कोप? If I talk about future scope, let me show you some analytics. We have one tool that is Google Trend. Okay, so it is the tool of Google itself. तो गूगल ट्रेंड्स जब आप सर्च करोगे, एक्चुअली दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑन विच वी कैन सर्च द ट्रेंडिंग सर्च टॉपिक्स, राइट? जो भी सर्च आप कर रहे हो, जो भी सर्चेस हो रही हैं गूगल पे, वो ट्रेंडिंग में अभी क्या चल रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट? सो लेट मी सिलेक्ट इंडिया फ्रॉम हियर. अभी हमारा यूएस यहाँ पे सिलेक्टेड है, सो आई सिलेक्टेड इंडिया एंड फ्रॉम हियर I search the topic that is like, let me search digital marketing. Okay, so मैंने यहाँ search किया digital marketing. You can try it for search term. Okay, and it is showing me the result of past 12 months now. See, past 12 months का result अगर आप देखो, so see यहाँ पे, but मैं इसको थोड़ा सा आपको और पीछे जाके दिखाती हूँ. पास्ट 5 इयर्स का एक बार देखते हैं कि किस तरह से इसका ट्रेंड आया. सी, यहाँ पे अगर आप देखो 2016 में, सो इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं था, बट फिर भी 2016 में काफ़ी ठीक है. इससे पहले का अगर देखेंगे तो इतना ज़्यादा बूम पे आपको नहीं मिलेगा. उसके बाद यू कैन सी दैट इट इज़ कॉन्स्टेंटली राइजिंग. सी, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, हम पिछली बार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यू कैन सी देयर इज अ, दिस इज ऑन द पीक. अगर मैं देखूँ फेब के बीच में, फेब में अगर आप देखो, दिस इज इंडेक्स एक्चुअली. अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो डिजिटल मार्केटिंग 84 है, एंड जो सर्चिंग इंडेक्स होता है वो होता है 0 से लेके आपका 100 तक. 84 इज रियली वेरी गुड इंडेक्स अगर यहाँ पे सर्च हो रहा है 2020 पे. एंड दिस वाज द टाइम जब फर्स्ट पैंडेमिक कोरोना का हमारे इंडिया में आया था, राइट? ये देखो यहाँ से, उसके बाद फिर से पीक पे गया. यहाँ पे आप देखो तो थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, ऐसा नहीं है. मई में देखो डिजिटल मार्केटिंग 99 पे है. सी, यहाँ पे अगर आप देखो इंडेक्स इसका 99. ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो इस ट्रेंड को. अगर मैं इसको 2004 से यहाँ पे सर्च करूँ तो 2004 से आप देखोगे कहाँ पहले एक बार पीक पे आया था 2004 में. ये दैट वाज ऑन 28, बट फिर भी इतना नहीं है. बट यहाँ पे अगर आप देखो ये कॉन्स्टेंटली ये इंक्रीज हुआ. यहाँ पे ये देखो, राइट? सो आप ये चीज देख सकते हो कि फ्यूचर स्कोप इसका आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये ऑब्वियसली आपका बूम पे जाएगा. ठीक है, इफ आई वांट टू कंपेयर इट विथ समथिंग, जैसे कि अब ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का ही देखेंगे. लेट्स सी फॉर, लेट कंपेयर इट फॉर वेब डेवलपमेंट. ठीक है, एक बार वेब डेवलपमेंट से हम देखते हैं एंड लेट्स सी ये कैसे हमारा इंक्रीज किया. ओ माय गुडनेस, सी, अब यहाँ पे देखो, पहले की अगर मैं बात करूँ 2004 की, तो वेब डेवलपमेंट ऑब्वियसली हमारा ज्यादा बूम पे था. सी, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इसके कंपैरिजन में कुछ नहीं था पहले. ठीक है, ये देखो वेब डेवलपमेंट. नाउ टाइम आया हमारा यहाँ पे, ये जो पॉइंट है अगर हम देखें तो यहाँ पे 2014 में, अगस्त 2014 में ये क्लैश किया और फिर वेब डेवलपमेंट हमारा डाउन में जाने लग गया और फिर डिजिटल मार्केटिंग ने बूम किया. ठीक, यहाँ पे जाके. ठीक है, ये देखो अगर मैं और इसको कंपेयर करूँ, लाइक लेट्स टेक द टर्म पाइथन. ऊपर पाइथन लेके चलते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी पाइथन आपका हमेशा से डिमांड में रहा. अभी क्योंकि स्कूल स्टूडेंट्स भी बेसिकली पाइथन सीखते हैं, राइट? तो आई थिंक हो सकता है पाइथन का और ज़्यादा डिमांड हो. तो आप देख रहे हो वेब डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग के कंपैरिजन में पाइथन का और डिमांड है, बिकॉज स्कूल स्टूडेंट्स आर ऑल्सो लर्निंग पाइथन. उनके करिकुलम में भी एडेड है पाइथन. ओके, सो आप देख रहे हो यहाँ से
अगर मैं कंपैरिजन करूं गूगल ट्रेंड्स में जाके, तो आई कैन सर्च इट फॉर एवरी टॉपिक। आप इवन यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स में देख सकते हो, आई मीन अलग अलग कंट्री में जो आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पे कि किस तरह से ये परफॉर्म कर रहा है। वेब डेवलपमेंट अगर यहाँ देखें तो यहाँ दिल्ली में तो भी है, बट यहाँ पे देखें तो वेब डेवलपमेंट में आपको बिल्कुल भी इंडेक्स नहीं दिख रहा है, राइट। ज़्यादातर पाइथन है, देन डिजिटल मार्केटिंग, फिर उसका आपका वेब डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पे रिलेटेड क्वेरीज लोग क्या क्या कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, सी डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स लोग कितनी सर्च कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहे हैं, राइट। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज जो लोग क्वेरी कर रहे हैं, वी कैन सी द रिजल्ट्स ओवर हियर। ठीक है, इस टूल को हम डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी, जब हम बेसिकली अपना आगे जैसे टूल्स कवर करेंगे तो उसमें कवर करेंगे। इसमें सिर्फ आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो फ्यूचर स्कोप है वो आप देख सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टेंटली ग्राफ क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है आपका ईयर बाय ईयर, राइट। सो फर्स्ट टर्म इज योर सर्च टर्म्स के बेसिस पे। सेकंड, आपका गूगल सर्च के बेसिस से भी आप देख सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग आपका कितना डिमांड में है, राइट। अब देखो, जैसे कि मैं गूगल पे जाके व्हेन आई एम सर्चिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ओके, आई एम सर्चिंग फॉर दिस टर्म डिजिटल मार्केटिंग, तो आप देखोगे इस टर्म की जो सर्चेस हो रही हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, ये इतनी हो रही हैं, देखो इवन लेस देन 1 सेकेंड से कम के भी टाइम में देर आर सो मैनी सर्चेस इन मिलियंस ऑफ सर्चेस देर आर ऑन गूगल इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड का आपको रिजल्ट दिखाएगा, बट व्हाट आई वांट टू चेक द रिजल्ट्स और द मंथली सर्चेस इन इंडिया ओनली, जो इंडिया में हो रही हैं। तो एक्चुअली आई एम यूजिंग वन टूल, उस टूल की वजह से मैं ये एनालिटिक्स देख पा रही हूँ। अभी आप देख रहे होगे तो आपको शायद ना दिखे, बट मैं एक टूल यूज़ करती हूँ, उसकी वजह से मैं जो भी मेरे उस कीवर्ड के सर्चेस हैं मंथली, आई कैन चेक देम आउट, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मंथली सर्चेस हैं 2,46,000 पर मंथ, जो कि बहुत ज़्यादा हैं अगर आप देखो डिजिटल मार्केटिंग लोग जो सर्च कर रहे हैं, राइट। फिर डिजिटल मार्केटिंग के बाद वो डिपेंड करता है यूजर पे कि वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए देख रहा है, वेदर ही इज लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज या डिजिटल मार्केटिंग फनल्स, डिजिटल मार्केटिंग गाइड, क्वेरी अलग अलग हो सकती है, राइट। इस वर्ड से, डिजिटल मार्केटिंग से मुझे यूजर का इंटेंशन क्लियर नहीं हो रहा फॉर व्हाट ही और शी इज लुकिंग, ओके। तो इसीलिए आप सर्चेस देख रहे हो, एक कॉमन वर्ड डिजिटल मार्केटिंग का ले लिया, लाइक आई वांट टू चेक कि कितने लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एक पर्टिकुलर जो टॉपिक है, मतलब एक इंटेंशन क्लियर करके सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ओके। सो आई कैन सी कि यहाँ पे 74,000 इंडिया में लोग ऐसे हैं जो पर मंथ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करते हैं, दैट इज ह्यूज, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्कोप का कि धीरे धीरे ये इंक्रीज होता चला जाएगा आपका टाइम बाय टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले, अगर मैं कोविड से पहले की सिचुएशन की बात करूँ तो दीज वर अराउंड 30 और 35,000 था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, बट कोविड सिचुएशन जब से आई तब से इसमें मैं जस्ट डबल नंबर्स मैंने देखे, जस्ट बिटवीन इन दिस 1 ईयर में पूरा डबल हो गए नंबर्स, राइट। तो आप देख रहे हो कि कितना यहाँ पे आपका स्कोप, फ्यूचर स्कोप है, ओके। एंड इसकी बात करें तो यहाँ पे हमने देखा 20 लाख जॉब्स की हमने बात कर ली है, येस देयर विल बी मोर देन 20 लाख जॉब्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्कोप क्या है, इवन ए स्मॉल शॉपकीपर ऑफ अवर लोकल एरिया वांट्स देयर बिजनेस ऑनलाइन, ठीक है। तो ऑनलाइन जब बिजनेस स्विच करना है तो डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ओके। सो ये चीज़ हो गई आपकी। उसके बाद हम ये एडवर्टाइजिंग वगैरह इसकी बात कर चुके हैं, ठीक है। इसको हम डिटेल में ऑल्दो देखेंगे जब हम ओवरव्यू ऑफ डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। अभी तो जस्ट मैं आपको एक बता रही हूँ कॉन्सेप्ट कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, स्कोप क्या है, बेनिफिट्स, तो थोड़ा सा एक आइडिया क्लियर हो जाए आपके माइंड में कि ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देख रहे हो आप नंबर ऑफ यूजर्स इंटरनेट का एक ग्राफ है ये 2015 से लेके 2023 तक, एंड इट इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। So when the number of internet users increase, then social media platforms or search engines or online digital channels platforms users will also increase, okay। so यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये डिमांड में आपका डिजिटल मार्केटिंग इसलिए है।
Okay, so it is a booming industry. 50% population who start reading newspaper online and who start taking online activities, doing online shopping, online webinar, online meetings, and all things are switching to online platforms. ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो एक फ्यूचर स्कोप आपका है, राइट। तो ये तो रहा हमारा बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग है क्या, बेनिफिट्स हमारे क्या है, स्कोप क्या है, ठीक है, फ्यूचर स्कोप हमारा क्या है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, आप क्या क्या पढ़ते हो डिजिटल मार्केटिंग में। ओके, इसके बाद फिर हम कवर करेंगे कि हमारी उन मॉड्यूल्स को जो हम पढ़ रहे हैं, उन मॉड्यूल्स को पढ़ने के बाद हमारी क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या फिर फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमारी क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो डाउट नहीं है किसी को, आगे चले। Am I audible? गुड टू गो, चलें आगे। Yes, all good. चलिए. ओके ओके, परफेक्ट। सी, अब यहाँ पे बेसिकली हमारे मैंने मॉड्यूल्स वाइज यहाँ पे लिख रखे हैं क्या क्या पढ़ते हो आप। तो फर्स्ट मॉड्यूल दैट वी विल कवर इज ओवरव्यू ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। Okay, so in overview you will cover what is digital marketing, what are the needs and benefits of digital marketing, what is the scope, opportunities, comparison between traditional and digital marketing, जिसमें से mostly आज हमने कर लिया है, right, and how online marketing works, हम marketing goals कैसे बनाएंगे, कुछ केस स्टडीज करेंगे जिन बिजनेस ने अपना ऑनलाइन स्विच किया था एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स दे आर टेकिंग और हाउ दे आर जनरेटिंग द रेवेन्यूज, राइट। तो यहाँ पे हम कुछ ओवरव्यू की बात करेंगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड मॉड्यूल आएगा वो आएगा हमारा वेबसाइट फंडामेंटल्स एंड टूल्स, राइट। अब इसमें देखो, जब शुरुआत हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग की करते हैं तो हमारे पास एक वेबसाइट होना मस्ट है। वी नीड टू क्रिएट द वेबसाइट इन दिस मॉड्यूल, ठीक है। बट नाउ द पॉइंट कम, वेदर वी नीड टू हैव द आइडिया ऑफ कोडिंग एज वेल। अगर हमें वेबसाइट बनानी है, अगर हम देखें तो माइंड में कॉन्सेप्ट आता है कि हमें कोडिंग आनी चाहिए, बट नो, दैट्स नॉट ट्रू। ठीक है, देखो, एक होता है वेब डेवलपर्स, ठीक है। वेब डेवलपर्स कौन होते हैं, जिनको कोडिंग के थ्रू जो वेबसाइट्स वगैरह या एप्लीकेशंस वगैरह क्रिएट करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, राइट। सो दे आर दी वेब डेवलपर्स हु क्रिएट द वेबसाइट थ्रू कोडिंग। बट नाउ वी आर द डिजिटल मार्केटर्स, तो हमें ज़रूरी नहीं हमें कोडिंग आनी ही चाहिए, राइट। तो हम किस पे वेबसाइट बनाएंगे, वर्डप्रेस। WordPress actually is a tool in which we will create our website, जहाँ पे फ्री ऑफ कोडिंग होता है, आपको कोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं इस वेबसाइट का एग्जांपल दूँ, सो दिस इज एक्चुअली ऑन वर्डप्रेस। ओके, तो आप वर्डप्रेस पे कोडिंग जैसी वेबसाइट भी, इवन उससे भी अच्छी अपनी वेबसाइट्स यहाँ पे बना सकते हो ऑन वर्डप्रेस। तो हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट डिज़ाइन करना सीखेंगे। ओके, तो ये आपका सेकंड मॉड्यूल रहेगा जिसमें आपके सब टॉपिक्स भी हैं। तो जब हम वेबसाइट बनाएंगे तब एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे। एंड देन वी हैव ब्लॉगिंग। अब देखो, ब्लॉगिंग क्या है, एक होता है नॉर्मल हमारी वेबसाइट, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको ये सीक्वेंस की वेबसाइट दिखाई, दिस इज अवर वेबसाइट, जिसमें हमने कोई हम स्टैटिक पेज डालेंगे, जैसे होम पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट अस पेज है, हमारी सर्विसेज का पेज है, या फिर हमारे कोर्सेज का पेज होगा, राइट। सो दैट इज अवर वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट मैं कह सकती हूँ, राइट। But what you want to write the articles or to write the blogs only, ठीक है। You don't have any business, you are not thinking of making any website, business website, तो कोई इशू नहीं है। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हो, जिसमें आप क्या करोगे, आर्टिकल्स लिखोगे, एक पर्टिकुलर निश, एक पर्टिकुलर कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे, उन कैटेगरीज पे आप अपने ब्लॉग्स लिखोगे, एंड व्हेन समवन कमिंग टू योर वेबसाइट दे विल read your blog, they will comment there, right। तो वो हो गई आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट, जब आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लिखते हो, जस्ट लाइक आर्टिकल्स।
राइट। बट यहाँ पे मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, वाई वी शुड राइट अननेसेसरली, मतलब हमें कोई इनकम नहीं जनरेट होगी, कोई हमारा वहां से हमारा बिजनेस नहीं आ रहा, वहां से रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा, तो ब्लॉगिंग वेबसाइट क्यों बनानी है? ब्लॉगिंग वेबसाइट हो गई या आपकी नॉर्मल वेबसाइट जो आप बिजनेस वेबसाइट्स बना रहे हो, राइट, हम अपनी वेबसाइट के थ्रू भी अर्न कर सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बताया, जैसे आपने अपनी सर्विसेज हैं, कोर्सेज हैं, आपकी वेबसाइट से अगर कोई डायरेक्ट परचेज करता है, सब्सक्राइब करता है, तो वो रेवेन्यू जनरेट करेगा। बट सपोज आपकी तो कोई सर्विसेज ही नहीं है, तो आप कैसे अर्न करोगे ब्लॉगिंग के थ्रू? राइट, मेथड्स ऑफ अर्निंग थ्रू ब्लॉगिंग, वो हम अपना इसमें देखेंगे। राइट, बाई रनिंग एड्स ऑन योर वेबसाइट, कि आपकी वेबसाइट पे दूसरे लोगों के एड्स दिख रहे हैं। राइट, सपोज आपकी वेबसाइट पे जो दूसरे लोग हैं उनके प्रोडक्ट्स के आप लिंक जो है प्रमोट कर रहे हो और कोई परचेज कर रहा है, देन यू विल गेट द कमीशन। राइट, तो वो होता है एफिलिएट मार्केटिंग, बेसिकली आपका कमीशन बेस्ड मार्केटिंग। राइट, तो डिफरेंट जो स्ट्रैटेजीज हैं अर्निंग की, वो हम यहाँ पे देखेंगे, ताकि अगर हमारी एक वेबसाइट बन जाए तो उससे हम मोनेटाइजेशन मॉडल उसमें लगा के हम क्या करें, अर्निंग हमारी आना स्टार्ट हो जाए। राइट, तो आपने देखा, आपने सिर्फ अभी एक मॉड्यूल सीखा डिजिटल मार्केटिंग का, ब्लॉगिंग या फिर वेबसाइट क्रिएट करना, वहां से आपकी अर्निंग आना शुरू हो गई। ओके, सो ये आपका हो गया ब्लॉगिंग। देन आपका आता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दिस इज द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये मान लो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में ये नहीं आता तो पूरी डिजिटल मार्केटिंग आपकी बेकार है। क्योंकि इसका लॉजिक आप चीज समझो, मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, ओके, अब मेरी वेबसाइट कोई पर्टिकुलर कीवर्ड पे, जैसे यूजर गूगल पे आके सर्च करे, ठीक है, मान लो उसको मेरा वेबसाइट का नाम नहीं पता, सो व्हाट ही और शी विल सर्च फॉर द टर्म, तो वो सर्च करेगा आपके बेसिकली इसकी जो क्वेरी होगी, और वो क्वेरी आपके लिए क्या होती है, कीवर्ड होती है डिजिटल मार्केटर के लिए। इफ समवन इज लुकिंग फॉर द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और यहाँ पे उसको जब आपके रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिल रहे, ठीक है, यहाँ पे आपकी वेबसाइट जब रैंक ही नहीं कर रही, तो क्या फायदा आपकी वेबसाइट का? राइट, तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक सर्च इंजन से जो हम ड्राइव करते हैं अपनी वेबसाइट में, या मैं ऐसे बोलूं, एसईओ क्या है? एसईओ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब अपनी वेबसाइट को आप सर्च इंजन्स के थ्रू ऑप्टिमाइज करते हो, ताकि आपकी वेबसाइट किसी पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे रैंक करे गूगल में या कोई भी सर्च इंजन में, ताकि ऑर्गेनिक तरीके से आपके पास क्या हो, ट्रैफिक आता रहे आपकी वेबसाइट पे, विजिटर्स विजिट करते रहे, और वहां से जो आपका बिजनेस है, जो पर्पस है, वो आपका सॉल्व होता रहे, रेवेन्यू आपका जनरेट होता रहे। राइट, तो अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन्स में रैंक कराना, वो किसके बेसिस पे है? आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। ओके, तो इसमें आपके अलग अलग टर्म्स होते हैं, जैसे ऑन पेज एसईओ हम करेंगे इसमें, ठीक है, मतलब अपनी वेबसाइट का कंटेंट पे ध्यान देंगे पूरा, कि वेबसाइट का कंटेंट कैसा है, मोबाइल फ्रेंडली आपकी वेबसाइट है कि नहीं है, किस तरह से आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, वो चीज़ें देखेंगे। देन उसके बाद ऑफ पेज एसईओ करेंगे, मतलब अपनी वेबसाइट के हम बैक लिंक्स बनाएंगे। बैकलिंक्स मतलब मुझे मेरी वेबसाइट पे क्या चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट करें मेरी वेबसाइट पे आए, तभी तो मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा, या जो मेरा पर्पस है मेरी वेबसाइट को क्रिएट करने का वो फुलफिल होगा। तो आप यहाँ पे बैकलिंक्स बनाते हो, ताकि आपको ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आता रहे। ओके, एंड देन आप टेक्निकल एसईओ पढ़ोगे, मतलब आपकी वेबसाइट में कोई टेक्निकल इश्यू तो नहीं आ रहा, मतलब लोडिंग टाइम कहीं ज़्यादा तो नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं आपकी वेबसाइट, आपके जितने भी वेबसाइट के पेजेस हैं वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, ठीक है, इस तरह से और भी फैक्टर्स होते हैं जिनको हम जब एसईओ पढ़ेंगे तब कवर करेंगे। राइट, देन वी हैव गूगल माई बिजनेस, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एसईओ। गूगल माई बिजनेस क्या होता है? आपका ये जो मैप वाले रिजल्ट्स आपको दिखते हैं, दीज आर दी मैप रिजल्ट्स, सो दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एसईओ, जो कि होता है आपका गूगल माई बिजनेस से। तो ये चीजें हम सीखेंगे कि ये जो रिजल्ट्स है बेसिकली हमें कैसे गूगल पे दिखे। राइट, फिर हम लैंडिंग पेजेस बनाना सीखेंगे, लाइक दीज, जैसे एक पेज ही आपको दिख रहा है, इस तरह से लैंडिंग पेज, मतलब कोई एक पर्टिकुलर पर्पस को सॉल्व कराने के लिए
आपको किस तरह का पेज बनाना है, वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अगर मान लो मुझे डायरेक्ट किसी से पेमेंट लेनी है, मतलब मैंने अपना क्या किया, फेसबुक पे मैंने कोई एक ऐड रन किया और उस ऐड पे कोई क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आता है, तो मैं उससे क्या एक्शन करवा रही हूँ बेसिकली, मैं उससे पेमेंट करवा रही हूँ, मैं उससे कोई डिटेल्स फिल करा रही हूँ, मैं उससे ई बुक डाउनलोड करा रही हूँ, वट एवर इट इज। ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस को सॉल्व करने के लिए जब आप कोई एक पर्टिकुलर पेज बनाते हैं, दैट इज योर लैंडिंग पेज, राइट। सो वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट पेज, हाउ टू मोनेटाइज पेज, क्या क्या एलिमेंट्स हमें रखने हैं, किन किन चीज़ों का फैक्टर्स का ध्यान रखना है, लैंडिंग पेज को अगर रैंक कराना है तो वो कैसे करेगा। ओके, सो यहाँ पे ये रहेगा आपका। देन आपका डिजिटल एनालिटिक्स, अब इसमें आपके टूल्स कवर होंगे, देखो, राइट। सो एज आई अर्लियर सेड, डिजिटल मार्केटिंग में आपके 80 प्लस टूल्स कवर होते हैं, राइट। लाइक हमारा कीवर्ड रिसर्च के टूल हम देखेंगे, कॉम्पिटिटर एनालिसिस के टूल्स हम देखेंगे, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के टूल्स देखेंगे, एसईओ के टूल्स देखेंगे, अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस मेजरमेंट के टूल्स देखेंगे, देयर आर सो मैनी टूल्स, एसईओ के टूल्स देखेंगे, राइट। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर देखो एक मॉड्यूल नहीं है कि इसी मॉड्यूल में मैं आपको सारे टूल्स सिखाऊंगी, बट जब से हमारा फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट होगा तभी से हम जो रिक्वायरमेंट है हमारे अलग अलग मॉड्यूल्स के लिए, वो हम टूल्स पढ़ते चले जाएंगे, राइट। सो वी विल बी कवरिंग मोर देन 80 टूल्स इसमें, ठीक है, जिसमें हमारा गूगल सर्च कंसोल टूल रहेगा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, गूगल एनालिटिक्स टूल आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हम अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस चेक करते हैं। ओके, उबर सजेस्ट टूल आपका कीवर्ड रिसर्च के लिए होता है, कीवर्ड रिसर्च जो हम करते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इससे देखेंगे, ठीक है। देन हमारे कुछ पेड टूल्स भी आएंगे, कुछ फ्री टूल्स हैं, कुछ पेड टूल्स हैं। सो यू नो नीड टू वरी अबाउट पेड टूल्स भी आपको परचेज नहीं करने, वी हैव एक्सेस ऑफ दोज टूल्स, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो ये सारे टूल्स जो हैं वो हम कवर करेंगे, जैसे आर्टिकल राइटिंग के टूल्स हम कवर करेंगे, अपनी पोस्ट जो सोशल मीडिया पोस्ट है हमारी, अगर हमको स्केड्यूल करना है डिफरेंट डेज के लिए, अलग अलग डेज के लिए, तो वो हम पहले से कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, राइट। फिर हमारा आता है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल बेसिकली होता है आपकी वेबसाइट को कंट्रोल करने के लिए, तो आपकी जो वेबसाइट है उसमें जो फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, कोडिंग पार्ट है, ठीक है, आपको कुछ अपलोड करना है, कुछ कोड लगाना है, तो वो सारी चीज़ें आपकी कहाँ होंगी, कंट्रोल पैनल में जाके, तो वो हम कवर करेंगे। फिर आ जाता है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो इसमें देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम दोनों पॉइंट कवर करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब देखो नाम से पता चल रहा होगा ऑप्टिमाइजेशन, मतलब इसमें हम ऑर्गेनिक मेथड्स यूज करेंगे कि ऑर्गेनिकली हम अपने चैनल्स को कैसे ग्रो कराएं, ठीक है। हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ऑर्गेनिकली हम कैसे ग्रो कराएं, मतलब विदाउट रनिंग एनी कैंपेन। ओके, सो ये स्ट्रैटेजीज हम सीखेंगे अपने इंस्टाग्राम के लिए, अपने फेसबुक के लिए, लिंक्डइन, ट्विटर या जो भी प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं। एक आ गया मार्केटिंग, मतलब हम इसमें कोई एक ऑडियंस को टारगेट करके कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करके ऐड का हम क्या करेंगे, ऐड रन करेंगे, राइट। सो वी विल लर्न ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट्स एज वेल, और मार्केटिंग के जो पॉइंट्स हैं, कैंपेन्स के जो पॉइंट्स हैं, वो भी हम सीखेंगे अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, उसको रिपोर्ट्स को कैसे चेक करना है, इनसाइट्स को कैसे चेक करना है, कंटेंट कैलेंडर कैसे बनाएंगे आप, सब कुछ हमारा इस मॉड्यूल में कवर होगा, राइट। एंड देन वी हैव कंटेंट प्लानिंग एंड प्रमोशन, इसमें थोड़ा सा पार्ट मैं आपको कंटेंट राइटिंग का भी कराऊंगी, क्योंकि कंटेंट राइटिंग बेसिकली इज अ मस्ट व्हेन वी राइट अवर ब्लॉग्स, हमारा एड हम बना रहे हैं तो ऐड के लिए एड कॉपी हम लिखते हैं, कॉपी राइटर्स, कॉपी राइटिंग आप कैसे करोगे, एवरीथिंग, तो थोड़ा सा पार्ट हमारा कंटेंट राइटिंग का भी रहेगा। फिर उसके बाद हमारा मेन जो रहता है डिजिटल मार्केटिंग में, वो रहता है कंटेंट प्लानिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा है आप अपने कंटेंट को प्लान कैसे करोगे,
पोस्ट करने के लिए कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सा कंटेंट जाए। अगर वो कंटेंट पोस्ट शेयर की है तो उस एनालिटिक्स को कैसे चेक करेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए कैसा एंगेजमेंट आया, कैसा उसका आपको बेसिकली रिस्पॉन्स मिल रहा है, राइट। कंटेंट आइडियाज हम कहाँ से ढूंढेंगे, कहाँ से हम कंटेंट आइडियाज बनाएंगे, राइट। हम कैसे हेडलाइंस कैची लिखेंगे, कैसे अपने पोस्ट को क्लिक बैट बहुत सुना होगा। क्लिक बैट क्या होता है कि हम ऐसा कैची थंबनेल बनाएं या कैची पोस्टर बनाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर क्लिक करें। ओके, सो वो सारी चीजें हम इसमें कंटेंट प्लानिंग, प्रमोशन, कंटेंट कैलेंडर, कंटेंट फनल, सब कुछ हम अपना कंटेंट प्लानिंग एंड प्रमोशन वाले पार्ट में करेंगे। बेसिकली इट इज कंटेंट मार्केटिंग, आप ये मान के चल सकते हो, राइट। फिर हम अपना ईमेल मार्केटिंग पढ़ेंगे और ईमेल मार्केटिंग में हम एडवांस लेवल, ऑटोमेशन वाला लेवल पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो मैं चाहती हूँ मेरी वेबसाइट पे कोई आ रहा है और वो अपनी डिटेल्स यहाँ मान लो सपोज फिल कर रहा है, एंड व्हाट आई वांट कि जैसी डिटेल फिल करे, ईमेल मार्केटिंग का मेरा एक टूल है उसमें ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पहुंच जाए, एंड वहां पे डिटेल्स जाने के बाद उसको ऑन द स्पॉट एक वेलकम ईमेल चला जाए, ठीक है। वेलकम ईमेल चला जाए, उसके बाद एक दिन बाद मान लो एक और मैंने ईमेल बना के रखा है सीक्वेंस में, वो ईमेल ऑटोमेटिकली फायर हो जाए आफ्टर 1 डे, ठीक है। फिर इट डिपेंड्स कि कस्टमर क्या एक्शन ले रहा है, वेदर ही ओपन दैट ईमेल और नॉट। अगर ओपन ईमेल किया है तब सेकंड ईमेल जाए, अगर फर्स्ट ईमेल को ही ओपन नहीं किया तो सेकंड ईमेल ना जाए, या कोई पर्टिकुलर एक्शन लिया है उसके बेसिस पे जाए। तो ऑटोमेशन पूरा सेट होता है, यही होते हैं मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल जो होते हैं। चैटबॉट हो गया आपका मार्केटिंग ऑटोमेशन। आप मान लो हमारे फेसबुक पेज पे जाओगे तो वहां पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली चैट एक ओपन हो जाएगी, बॉक्स, चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा, है ना। और वहां पे कुछ क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी दिखेंगे, और उन सेट ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पे अगर आप एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो तो आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली द ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आजकल डिजिटल मार्केटिंग में भी आपका, राइट। तो पूरा ऑटोमेशन वाला जो पार्ट है वो हम अपना डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग में जो ऑटोमेशन यूज होते हैं दैट वी विल लर्न, ठीक है। उसके बाद हमारा पेपर क्लिक आता है, तो पेपर क्लिक को ही हम एक तरह से गूगल एड बोल सकते हैं। गूगल एड हम रन करना सीखेंगे, या मैं बोल दूं सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। एक देखो हमने देखा था सर्च इंजन SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं। जैसे मैं इनको देखूं, सो दीज आर दी ऑर्गेनिक रिजल्ट्स जो SEO के रिजल्ट्स हैं, ओके। अगर मैं देखूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे अभी कौन कौन एड चला रहा है, सो यू कैन सी, आई कैन सी दीज 2 एड्स ऑन गूगल। तो ये एड जो है इन लोगों ने रन कर रखे हैं, वो किसकी हेल्प से रन कर रखे हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ गूगल एड्स। तो ये जो पेड कैंपेन्स होते हैं गूगल पे जो रन होते हैं, राइट, वो होते हैं आपके गूगल एड्स के थ्रू, जिसमें डिफरेंट टाइप के एड्स कवर हो सकते हैं आपके। फर्स्ट वन इज योर सर्च एड। सर्च एड कौन सा होता है आपका, टेक्स्ट के फॉर्म में जो एड होता है, दिस वन। जैसे ये एड है आप देख रहे हो टेक्स्ट के फॉर्म में ये एड है, तो ये आपका सर्च एड हो गया। अगर मैं यही बात करूं डिस्प्ले एड की, तो डिस्प्ले नाम से समझ आ रहा है आपका होगा वो इमेज एड। जैसे मैं एक वेबसाइट ओपन करती हूँ, मान लो आज तक एक वेबसाइट मैंने ओपन की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको कुछ एड इमेज के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। ये देखो, सी दिस इज द एड, ठीक है। हियर दिस इज द एड, ये देखो आप यहाँ पे देख रहे हो, आप गूगल द्वारा विज्ञापन, ये आप देख रहे हो लिखा होगा यहाँ पे, राइट, एडवर्टाइजमेंट बाय गूगल। तो ये क्या है, गूगल का एड यहाँ पे दिख रहा है, सी ये देखो यहाँ पे। या फिर मैं एक आपको बहुत यहाँ पे देखो, हियर ये रन कर रहे हैं एड जो है इसके लिए, राइट। सो दिस इज एक्चुअली द गूगल एड, सी। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया, डिस्प्ले एड हो गया, जो हमारी इमेज के फॉर्म में बेसिकली ऐड होते हैं, ठीक है। कुछ आपको शॉपिंग एड्स मिलेंगे, जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो बाय शूज ऑनलाइन या वट एवर यू वुड लाइक टू सर्च, तो आप यहाँ पे आप सर्च करोगे and you can see the shopping results over here, shopping ad, see
एड्स, ये देख रहे हो ADS एड्स शॉप, दे आर द रिजल्ट्स जिन्होंने शॉपिंग एड्स बनाए हैं, ठीक है। देयर आर सम वीडियो एड्स, वीडियो एड्स आपको कहाँ दिखते हैं, यूट्यूब पे। जब आप वीडियो ऑन अपनी कोई भी यूट्यूब पे वीडियो पे जाते हो तो वहाँ पे शुरू में, लास्ट में या बीच में कुछ स्किपेबल एड्स दिखते हैं आपको, कुछ नॉन स्किपेबल एड्स दिखते हैं, राइट। कई बार आपको ऐप इंस्टॉल का एड दिखता है, तो दैट इज फॉर द ऐप प्रमोशन, राइट। तो गूगल एड अकाउंट से आप ये डिफरेंट टाइप के एड्स कैसे बनाते हो वो आप सीखोगे, ठीक है। सर्च एड, डिस्प्ले एड, यहाँ से फिर आपका वीडियो एड, शॉपिंग एड, ऐप प्रमोशन। तो ये चीज़ें आप इस मॉड्यूल में, जो आपका गूगल एड्स वाले मॉड्यूल रहेंगे, इनमें आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। देन उसके बाद अकाउंट्स लिंकिंग, basically what it is actually connecting the accounts, ठीक है। आपस में जो आप अकाउंट्स को कनेक्ट करते हो, जैसे गूगल एड अकाउंट है, उसको आपको गूगल एनालिटिक्स जो टूल है उसके साथ कैसे कनेक्ट करना है, सो दैट यू कैन गेट द डेटा देयर। अपनी वेबसाइट के साथ आप अदर टूल्स को कैसे इंटीग्रेट करोगे। अब सपोज मुझे गूगल एड रन करना है, सो फॉर रनिंग गूगल एड वीडियो एड आई नीड टू कनेक्ट गूगल एड अकाउंट टू द यूट्यूब चैनल, राइट। तो यूट्यूब चैनल से कैसे कनेक्ट करोगे। आपका कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके लिए आपको एड रन करना है, सो फर्स्ट यू नीड टू कनेक्ट योर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर थ्रू गूगल एड्स, राइट। तो यहाँ पे जो डिफरेंट अकाउंट लिंकिंग होती है वो आपको बताई जाती है कैसे आप करोगे। ऑल्दो इस पार्ट को हम साथ के साथ कवर करते चलेंगे, जैसे हम एक एक मॉड्यूल कवर करेंगे तो वो ये कंप्लीट हो जाता है आपका, राइट। देन आपका ई कॉमर्स मार्केटिंग आता है। अब इसमें देखो टोटली आपका ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल के लिए वेबसाइट बनती है। जैसे आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, राइट। सो वी हैव डिफरेंट लेआउट फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। जैसे उसमें आपका कार्ट पेज होना चाहिए, यू शुड हैव चेकआउट पेज, प्रोडक्ट पेज इज देयर, ठीक है, होम पेज इज देयर, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज इज देयर, एंड प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट कैटेगरीज आर देयर। अगर कोई कस्टमर परचेज करता है ऑर्डर, तो उसको आप ट्रैक कैसे करोगे, शिपिंग मेथड्स कैसे ऐड करने हैं, डिफरेंट टैक्सेस अकॉर्डिंग टू द सेंटर एंड स्टेट आप कैसे लगाओगे, पेमेंट गेटवेज कैसे लगाओगे, राइट, कूपन कोड्स कैसे बनाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी ई कॉमर्स मार्केटिंग में कवर होती हैं। एंड हियर यू विल ऑल्सो लर्न ई कॉमर्स वेबसाइट का आप SEO कैसे करते हो, ठीक है। ई कॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन यू विल बी लर्निंग। Then affiliate marketing is there, ठीक है। In affiliate marketing actually you will learn commission based marketing। तो देखो जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स होते हैं, बेसिकली जो ब्लॉग्स लिखते हैं, वो एफिलिएट मार्केटिंग से बहुत अर्न करते हैं। हाउ यू कैन सी कि एफिलिएट मार्केटिंग को एज आप कमीशन बेस्ड मार्केटिंग ले सकते हो। कैसे, अब मान लो एक हो गया ई कॉमर्स मार्केटिंग, इसमें तो आपके पास खुद के आपके प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप सब कुछ हैंडल कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट्स आप खुद देख रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पे सपोज आपके खुद के प्रोडक्ट्स नहीं है आपके पास, यू डोंट हैव योर ओन प्रोडक्ट्स, बट व्हाट यू वांट, किसी और के प्रोडक्ट्स आप अपनी वेबसाइट के थ्रू या अपने ब्लॉग्स या फिर अपने सोशल मीडिया के थ्रू या यूट्यूब चैनल्स हैं उनके थ्रू अब अगर आप प्रमोट करते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लो अमेजोन का मैं एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। अमेजोन पे बहुत सारे सेलर्स हैं, ठीक है। मैंने अमेजोन पे जाके अपना एसोसिएट अकाउंट बना दिया, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ चार्ज नहीं देना पड़ता, ठीक है। आप उसके एफिलिएट पार्टनर बन गए, ठीक है। आपने फॉर्म फिल किया, आप एफिलिएट पार्टनर बन गए, आपको अब अमेजोन पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबके लिंक्स मिलना आपको शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट लिंक, ठीक है। आप आए अपनी वेबसाइट, आपने एक अच्छा सा ब्लॉग लिखा, जैसे मैं जिस प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाली हूँ, सपोज वो है कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, या फिर कोई क्रिएटिव्स ग्राफिक्स बनाने के लिए कोई टूल है, राइट। सो व्हाट आई डिड, मैंने एक अच्छा सा ब्लॉग लिखा, टॉप 10 ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स या टॉप 10 ग्राफिक्स क्रिएटर टूल्स यू मस्ट ट्राई इन 2021, राइट। तो मैंने डिफरेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया, पॉइंट 1 ये वाला टूल, पॉइंट 2 ये वाला टूल, और नीचे उसी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया आई हैव ट्राइड इट फॉर माई सेल्फ एंड आई फाउंड इट रियली रेलिवेंट, और जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। एंड नीचे मैंने वहाँ पे लिंक दे दिया, इफ़ यू वांट टू परचेज इट यू कैन परचेज इट थ्रू दिस लिंक, ओके। और मैंने वो अपना जो एफिलिएट लिंक था वो मैंने लगा दिया नीचे।
if when someone coming to my blog और पढ़ रहा है उस blog को, what they can do, they can just click on that link and purchase the product. तो जब भी परचेज होगा, जब भी सेल होगा उस प्रोडक्ट का, या कोई ऐसी स्कीम है अगर कोई सब्सक्राइब करेगा, तो मुझे क्या होगा, उसका कुछ परसेंट कमीशन जो सेल का होता है मुझे मिलता है, राइट। तो व्हाट आई डिड, मैंने किसी और के प्रोडक्ट से जस्ट उसको प्रमोट करके अपनी जो ऑडियंस थी उसको मैंने वहां से अर्निंग कर दी, ठीक है, कमीशन अर्न किया। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मॉडल है डिजिटल मार्केटर्स के लिए, जो लोग यहाँ पे लैक्स में अर्न कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर काम करके। ओके, एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स आप इसको मान सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग को, ठीक है। देन हमारा इनबाउंड मार्केटिंग आता है। इसमें आप अपनी बेसिकली जो आपकी बिजनेस की जो स्ट्रैटेजी होगी उसको आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बना के यहाँ पे अपनी कंपनी को देते हो, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज। जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें हम एजुकेशन के हिसाब से अपने जो सेल्स फनल हैं वो बनाएंगे कि पहले हमारा स्टूडेंट टॉप ऑफ द फनल में आया, फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि वो हमारा बॉटम मतलब मिडिल ऑफ द फनल में आए, फिर मिडिल ऑफ द फनल से जो लास्ट फेज है मतलब डिसीजन वाला फेज, जो सेल्स वाला फेज है, वहां तक आए, राइट। तो अलग अलग अपने बायर्स पर्सोना को ध्यान में रखते हुए, अपने बायर्स बिहेवियर, बायर्स जो एक्शन है उनको ध्यान में रखते हुए आप क्या क्या KPIs मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स सेट करते हो, ताकि एक फनल जो आपका पोटेंशियल कस्टमर आपका बने, पोटेंशियल क्लाइंट जो है उसको आप अपने बायर में चेंज कर पाओ। तो वो क्या क्या स्ट्रैटेजीज फनल्स आप बनाओगे वो आप इनबाउंड मार्केटिंग में सीखते हो, राइट। आपका फिर वीडियो मार्केटिंग आ जाता है। इसमें पूरा आप यूट्यूब चैनल कवर करते हो, जैसे कि आपका यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करना है, आपको कैसे अपने यूट्यूब चैनल को कस्टमाइज करना है, ठीक है, कीवर्ड्स, टैग्स, अपनी जो बेसिकली गूगल पे यूट्यूब पे जाके अगर कोई सर्च करे कोई कीवर्ड के थ्रू, तो आपकी वीडियोस वहाँ रैंक करनी चाहिए। फर्स्ट जो होम पेज है गूगल का उस सॉरी यूट्यूब का, उस पर शो करनी चाहिए, राइट। आप कैसे अपने यूट्यूब चैनल से अर्न कर सकते हो, मतलब आपकी वीडियोस में किसी और के ऐड दिख रहे हैं तो आप कैसे अर्न करोगे वहां से, कैसे अपने चैनल को मोनेटाइज करोगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं, बेसिकली वो आप इसमें सीखते हो वीडियो मार्केटिंग में, ठीक है। यहाँ तक तो डाउट नहीं है किसी भी मॉड्यूल में कि आपको क्या पढ़ना है इस मॉड्यूल में? Really, all good. It will be really Oh. good, Yamini, if we are able to apply this, learn this, and then apply. Yes, yes, really. If we imply or if we implement all the concept, trust me, within 2 to 3 months, you will be able to earn side income, like earn extra from freelancing, taking freelancing projects. I'm Yeah. really eager to do that. Hopefully, समझ पाऊँ और कर पाऊँ. हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप कर पाओगे, डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू इन योर जर्नी, डिजिटल मार्केटिंग जर्नी। Thank you. या फिर आ जाता है हमारा, देखो, मोबाइल मार्केटिंग। सो बेसिकली दिस मॉड्यूल इज फॉर द मोबाइल एप्लीकेशंस। जैसे कि मान लो अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है एंड व्हाट दे वांट दैट वी हैव द मोबाइल एप्लीकेशन एंड व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट टू प्रमोट देयर मोबाइल एप्लीकेशंस ऑन गूगल प्ले, ऐप स्टोर। तो वहाँ पे आपको मोबाइल मोनेटाइजेशन, जैसे हमारी वेबसाइट में ऐड दिखते हैं वैसे ही मोबाइल्स में भी जो मोबाइल एप्लीकेशन होता है उसमें भी बेसिकली ऐड आप रन करा सकते हो, एंड वहाँ से जो ओनर है मोबाइल एप्लीकेशन जिसका है, दे कैन अर्न मनी, राइट। तो जो मैं आपको बात बता रही हूँ ना, पूरा डिजिटल मार्केटिंग का, जैसे आपने अभी तक देखा, पूरा एक एक मॉड्यूल मोनेटाइजेशन मॉड्यूल है। अगर आपको एक भी चीज, एक दो चीजें भी यहाँ पे परफेक्ट तरीके से आ गई, देन यू विल बी एबल टू अर्न मनी। मतलब वहाँ पे एक आपका अर्निंग सोर्स जो है वो बन जाता है। और इतना इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, बेसिकली ये जो अब मैं बताऊँ आपको डिजिटल मार्केटिंग, कि एक बार जब आप अपना फुल माइंड से जब आप इसको करने लग जाओगे ना, सीरियसली आपको टायर्डनेस भी नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इस कॉन्सेप्ट को मुझे अभी अप्लाई करना है और देखना है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, सारा प्रैक्टिकल है, इसीलिए बहुत सारी चीजें आप एक्सप्लोर करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, देखोगे, कॉम्पिटिटर रिसर्च करोगे, मार्केट एनालिसिस करोगे, तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने भी मिलेंगी, एंड बहुत एक जो माइंड है वो आपका बहुत ब्रॉड वे में काम करेगा, बहुत ज्यादा चीजों को सीखेगा, राइट। सो ये हमारा मोबाइल मार्केटिंग। उसके बाद
हम यहाँ पे फिर जो मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर ऑर्गेनिक तरीके से हमें रैंक कराना है तो वो चीज़ हम सीखते हैं ASO। जैसे हमने SEO पढ़ा था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट के लिए, वैसे ही हम ASO पढ़ते हैं, मतलब अपने मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे हम कैसे रैंक कराएंगे और क्या क्या चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। बेसिकली कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मोनेटाइज ऐप को कैसे करेंगे, हम रिव्यूज रेटिंग्स का कैसे ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें आपकी इस मॉड्यूल में कवर होंगी। एंड देन हमारा ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट रहता है। बिल्कुल, जब आपका बिजनेस ऑनलाइन है तो आपको रेपुटेशन का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। व्हाट आर दी रेटिंग्स, रिव्यूज, कैसे लोग कमेंट कर रहे हैं, क्या व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट यू इन द मार्केट, ठीक है, किस तरह से बेसिकली आपका इंप्रेशन हो रहा है ब्रांड का, ठीक है, किस तरह से कितनी रीच बेसिकली जा रही है आपकी, कहाँ कहाँ के लोग आपको विजिट कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, और वो किस तरह का एक्शन ले रहे हैं, एक्विजिशन, ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में, राइट। फिर हमारा लीड जनरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि किसी भी बिजनेस के लिए मैंने आपको क्या बताया, लीड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है, राइट। तो व्हाट आर दोज वेज जिनसे आप लीड जनरेट करके अपनी बिजनेस को दोगे। तो हियर वी विल लर्न बोथ द टेक्निक्स, ऑर्गेनिक तरीका भी हम देखेंगे और हम कुछ पेड ऑप्शंस भी देखेंगे कि अगर हमें मान लो अभी हमारे पास इतना ऑर्गेनिकली इतना स्कोप नहीं है, हमारी वेबसाइट नई है या हमारा बिजनेस नया है, तो हम पेड कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम लीड जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 100 आइडियाज बताऊंगी जिसमें से आप अपनी बिजनेस के लिए लीड जनरेट करने के लिए वो अप्लाई कर सकते हो, राइट। एंड देन CRM इज एक्चुअली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो यहाँ पे अपने कस्टमर के साथ आपको कैसे इंगेज होके रखना है, किन किन टूल्स को आप यूज़ करोगे, जो एक मैनेजमेंट सिस्टम है बेसिकली वो आप कैसे देखोगे, किन किन चीज़ों का ध्यान रखोगे, कौन कौन से टूल्स ऐसे हैं जिनको आप अप्लाई करोगे, ठीक है, प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे अलग अलग स्टेजेस में, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे करते हो। मार्केट रिसर्च हमारा रहता है, पूरा मार्केट रिसर्च करना, कौन से मार्केट में अभी क्या डिमांड चल रही है, वहाँ पे प्रोडक्ट का उसका डिमांड है भी कि नहीं, राइट। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं ऑनलाइन सर्वे से, या फिर अदर पोल्स क्रिएट करके, या अदर ऑप्शंस जो हमारे पास हैं फॉर्म फिल करा के, या जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं उस मार्केट के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग वो चीज़ हम देखते हैं, क्योंकि मार्केट रिसर्च हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एक नए प्रोडक्ट को या जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च करने से पहले हम मार्केट रिसर्च बिल्कुल करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूँ, नाउ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ लाइक, मान लो हम गांव में, कोई विलेज है, कोई गांव है या टाउन है छोटा सा, उसमें अगर मैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लॉन्च करूँ, डू यू थिंक वहाँ मेरा सक्सेसफुल होगा? नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग एफोर्ड नहीं कर पाएंगे जो मेरा प्राइस है बेसिकली, राइट, कॉस्ट जो है मेरे प्रोडक्ट का। तो मुझे वही के अकॉर्डिंग, उन लोगों के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि वहाँ मैं कैसा प्रोडक्ट लॉन्च करूँगी तब जाके होगा। या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी अलग अलग एरिया आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए फेमस होते हैं। जैसे मैं दिल्ली में नेहरू प्लेस की बात करूँ तो वो क्या है, आपका पूरा IT हब की तरह आप मान सकते हो कि लैपटॉप, कंप्यूटर्स, जो भी आपके सिस्टम पार्ट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अच्छे रेट में सही मिल जाती हैं, राइट। तो उसी तरह से जैसे DC है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, अगर जनकपुरी की बात करें तो ये भी अपने आप में एक सारी चीज़ों के लिए फेमस है, जो आपके कंप्यूटर्स वगैरह इन सब के, राइट। तो आप देख रहे हो एक पर्टिकुलर एरिया को भी देखते हैं कि इस एरिया में हमारा ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ये प्रोडक्ट है कि नहीं, राइट। फिर हम ग्रोथ हैक सीखते हैं, ये एडवांस पार्ट रहेगा आपका, जिसमें हम पूरा मार्केट रिसर्च, कॉम्पिटिटर एनालिसिस हाई लेवल की, कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, रीमार्केटिंग कैसे करेंगे, कस्टमर को रीटारगेट करेंगे, कस्टम ऑडियंस कैसे बनाएंगे, सब कुछ पूरा प्रॉपर एकदम टू द डेप्थ जो हमारे बिजनेस के ग्रोथ के लिए काम आएंगे, वो हैक्स हम इसमें देखते हैं, ठीक है। आपके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स रहेंगे साथ के साथ, जैसे कि आपने एक मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया सपोज SEO, तो SEO के बाद आपका उसी के बेसिस पे पूरा प्रोजेक्ट रहेगा एक, वो आपको सबमिट करना है टाइम टू टाइम, आपका क्लास टेस्ट होते रहेंगे, आपके असाइनमेंट्स होते रहेंगे, ताकि आप एक एनालिसिस, अपना सेल्फ एनालिसिस कर पाओ कि आप कहाँ अभी स्टैंड कर रहे हो, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक में, कहाँ क्या चीज़ आप मिस कर रहे हो, कौन सा पॉइंट है जो आपसे मिस हो रहा है, ताकि हमारे बैकअप क्लासेस वगैरह हम शेड्यूल करके अपना जो भी है हम उसको कवर कर पाएँ, ठीक है। फिर मैं आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स का भी बताती हूँ कि आप जो है
किस तरह से फ्रीलांसिंग के लिए तैयार हो गए तो आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कहाँ से उठाना स्टार्ट करोगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपके कौन कौन से हैं। बेसिकली अगर आप किसी लोकल क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप एज अ इनिशियल लेवल पे क्या चार्जेस उससे मांगोगे। जैसे वर्डप्रेस की कोई वेबसाइट आपको बना के देनी है तो वहाँ पे क्या चार्जेस रहेंगे, एसईओ करके देना है तो क्या चार्जेस रहेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आप करके दे रहे हो, मान लो उसका सिर्फ आप इंस्टाग्राम अकाउंट ही हैंडल कर रहे हो, दैट्स इट, तो उसके लिए आप कितने चार्जेस मांगोगे। तो वो फ्रीलांसिंग का जो बेसिकली हमारा पूरा कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी ऑडिट फाइल आप कैसे बनाओगे, आप किसी क्लाइंट को अपना प्रोजेक्ट कैसे दिखाओगे, क्योंकि वो फ्रेशर को बेसिकली थोड़ा टफ हो जाता है कई बार प्रोजेक्ट लेना। बट अगर आप अपनी ही वेबसाइट पे काम करते हो एज अ प्रोजेक्ट, अगर अपनी ही वेबसाइट का आप एसईओ करते हो और वही एग्जाम्पल दिखाते हो, तो ऑब्वियसली आपको वहाँ प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे मिलने के चांसेस रहते हैं, राइट। सो इवन फॉरेन में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। अब्रॉड में अगर आप देखो यूएस, कनाडा वगैरह, मैनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स वेंट टू कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये डिजिटल मार्केटिंग यहाँ से करके, ठीक है, एंड दे आर अर्निंग इन डॉलर्स देयर। इवन यू कैन ऑल्सो अर्न इन डॉलर बाय सिटिंग इन इंडिया। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं डेट आई विल लेट यू नो, ठीक है, जो आपके, आप जो बोलोगे बस आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, आपके बोलने पे वहाँ पे आपको डॉलर्स में क्लाइंट पे करने को तैयार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, फिर उसके बाद इट इज़ फॉर स्टूडेंट्स एक्चुअली प्रोफेशनल स्किल्स ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, हम स्टूडेंट को तैयार करते हैं फॉर दी जॉब पर्पस, है ना, इंटरव्यूज़ के लिए, कि कैसे आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, रिज्यूमे आप कैसे बनाओगे अपना, कैसे आप फेस करोगे इंटरव्यू को। और इंटर्नशिप हम इसमें कराते हैं, जैसे कि मान लो 2 मंथ्स की, 3 मंथ्स की, डिपेंड्स ऑन द कंपनी। और वहाँ पे इंटर्नशिप होती है, पेड इंटर्नशिप, तो वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं कंपनी में, इंडस्ट्री पे क्या काम हो रहा है बेसिकली वो देखते हैं, टीम के साथ काम करते हैं, और वो उनकी वो इंटर्नशिप पेड होती है, राइट। फिर उसके बाद हमारा जाता है सर्टिफिकेशंस, मतलब हम यहाँ पे आपके, आप मान के चलो, यू विल बी गेटिंग मोर देन 20 सर्टिफिकेट्स इस कोर्स में। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस होते हैं ये, और इंटरनेशनली वैलिड होते हैं, क्योंकि ये गूगल या हायर जो बेसिकली अकेडमीज होती हैं आपकी, जैसे SEM रश हो गया, आपका हब स्पॉट है, बड़ी बड़ी जो डिजिटल मार्केटिंग अकेडमीज हो गई, और गूगल, इनसे आपका सर्टिफिकेशंस होता है, ठीक है। सो लेट मी शो यू माय प्रोफाइल। उसमें मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे इफ सम HR और समवन लुकिंग फॉर द डिजिटल मार्केटर, दे कैन डायरेक्टली सी माय प्रोफाइल and my certificates, ठीक है। So here is my LinkedIn profile, and I have added my resume over here also, resume, my some of my testimonials of students, and यहाँ पे you can see this is my experience, यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है, and these are my certificates actually, ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने LinkedIn में अपनी ये सर्टिफिकेट्स ऐड कर रखे हैं। इफ समवन इज लाइक लुकिंग फॉर कंटेंट मार्केटर, है ना, या फिर ईमेल मार्केटर, दे कैन सी माय क्रेडेंशियल्स फ्रॉम हियर whether these are valid or not, right? So they can see my certificate is valid, and it is its expiry date is 3rd May 2022, ठीक है। तो यहाँ पे what you can do, you can earn certificate, you can achieve certificate, and उनको फिर आप अपने प्रोफाइल्स में, LinkedIn प्रोफाइल जो बेसिकली आपका प्रोफेशनल्स के लिए होता है, you can do that, and trust me, by doing this, by making my strong profile on LinkedIn, I used to get 3 or 4 job offers every week, yes, every week। यहाँ से एक गूगल से, जो मैंने आपको दिखाया, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर अगर कोई सर्च करता है, दे कैन सी माई प्रोफाइल, राइट। बट आई एम फुली वर्किंग विद CQS, so I don't have much time to take extra projects and all। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जस्ट बाय डूइंग दिस कोर्स और ये कॉन्सेप्ट सीख के आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, जो कि आप यहाँ से कितनी सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, और इनको एज अ फ्रीलांसर लाइफ टाइम ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग का मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे कैसे चीज़ें देख सकते हो। जैसे जॉब की अगर मैं बात करूँ, तो जॉब में आप देखो, देयर आर मोर देन 25 पोजीशंस, डेजिग्नेशंस, जिन पे आप काम कर सकते हो। सी यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन की हैं, बट जितने भी मैंने आपको मॉड्यूल्स बताए, इट्स ऑलमोस्ट, अगर मैं एवरेज लेके चलूँ, सर्टिफिकेशन वगैरह आप हटा दो, तो 36-37 मॉड्यूल्स आपके ऐसे हैं
जो आपको जॉब के लिए तैयार करते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर गुड इन SEO, इफ़ यू आर गुड इन सोशल मीडिया लीड्स, ऑनलाइन लीड जनरेशन या गूगल एड्स, गूगल एनालिटिक्स, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ईमेल मार्केटिंग, तो आप पर्टिकुलर उसी फील्ड में काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको पूरा डिजिटल मार्केटिंग आए, यू कैन वर्क इन दैट फील्ड ऑनली। If you are expert in all the fields, what you can do, you can work as a digital marketing manager, strategist या जो भी पोजीशन है वहाँ काम कर सकते हो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग में SEO भी संभाल लो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग भी संभाल लो, आप एफिलिएट मार्केटिंग भी संभाल लो, आप वीडियो मार्केटिंग भी, नो सिंगल पर्सन कांट डू ऑल दीज थिंग्स, राइट। वहाँ पे टीम्स होती हैं, बेसिकली टीम काम करती हैं, 2 लोग हैं SEO संभालते हैं, 2 लोग आपका ईमेल मार्केटिंग, इस तरह से बेसिकली टीम में, डिजिटल मार्केटिंग टीम में काम होता है। तो आपके पास अगर आपने मान लो SEO ही बहुत अच्छे से सीख लिया, तो आप एज अ SEO एनालिस्ट, SEO एग्जीक्यूटिव, स्पेशलिस्ट काम कर सकते हो। एंड SEO एक ऐसी जॉब है जो कि डिजिटल मार्केटर्स इस पोजीशन पे, इस डेजिग्नेशन में सबसे ज़्यादा अर्न करते हैं SEO एक्सपर्ट्स। बहुत ज़्यादा इनकी सैलरी होती है SEO एक्सपर्ट्स की, और जहाँ आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हुआ नहीं, वहाँ आपको एकदम अर्निंग आपकी बहुत अच्छी होती है। लिंक्डइन पे अगर आप सर्च करोगे, देखोगे, अगर जॉब्स का मैं आपको बस सिखाऊंगी बाद में, जब हम जॉब्स का देखेंगे तो वहाँ पे देखना इनकी इनकम, सैलरी वगैरह हम सब चीज़ें देख सकते हैं कि SEO की अभी सैलरी यहाँ कितनी है इंडिया में, और अगर आप स्विच करने की सोच रहे हो अब्रॉड की, तो वहाँ पे आप कितना अर्न कर सकते हो इस बेसिस पे, राइट। तो ये जॉब्स का हो गया। बाकी का अगर मैं बात करूँ, एज अ फ्रीलांसर आपको काम करना है तो सी यू कैन वर्क एज अ प्रोफेशनल ब्लॉगर, जो मैंने आपको बताया। आप एज अ ब्लॉग लिख के उन ब्लॉग्स में आपके ऐड दिखेंगे दूसरों के, ठीक है, वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। या फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न कर सकते हो, जैसे मैंने बताया, दूसरों के प्रोडक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो आप अपने ब्लॉग्स के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू प्रमोट करके वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे देखा आपने, एक साइड इनकम आपकी हो गई। मान लो आपकी अगर कोई जॉब भी है, आपने क्विट भी नहीं की अपनी जॉब, और जब भी आपको टाइम मिला तब आपने क्या किया, सिर्फ लिंक्स को प्रमोट किया, आपका अच्छा खासे लोग हैं, ब्लॉग्स पे आ रहे हैं, ट्रैफिक है, आपकी एक ट्रस्टेड ऑडियंस है, आपको जानती है, और ऑब्वियसली वो आपकी बात मानती है ऑडियंस, आपके प्रोडक्ट को वहाँ से परचेज करेगी वो, और आपको कमीशन वहाँ से मिलता रहेगा, राइट। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपकी अर्निंग जो फ्रीलैंसिंग से है वो कितनी हो रही है, राइट। ये तो चलो साइड इनकम का है, मैं इसको फ्रीलांसिंग नहीं बोलूंगी, आप चाहो तो कर भी सकते हो फ्रीलांसिंग, जैसे प्रोफेशनल ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग एंड एडसेंस, मतलब एड आपकी वेबसाइट पे रन होगा किसी और का, राइट। ये आ गई आपकी फ्रीलांसिंग सर्विसेज। अब यहाँ पे आप अपना लोकल क्लाइंट हो गया, या फिर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स देख रहे हो, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो वेबसाइट्स हैं, जैसे freelancer.com हो गया, फाइवर है, अपवर्क है, इन पे जाके अपनी प्रोफाइल बना के वहाँ आप काम जो है स्टार्ट कर सकते हो। एंड देयर आर सो मैनी प्रोजेक्ट्स। देखो मैं आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको दिखा देती हूँ। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे सर्च किया, एक वेबसाइट दिखाती हूँ आपको, fiverr.com। देखना यहाँ पे जब आप जा रहे हो, सो लेट मी शो यू, देखो कितने सारे फील्ड के यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जो लोग देखते हैं। अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ, सी डिजिटल मार्केटिंग में कितने फील्ड्स हैं देखो यहाँ पे, राइट। अगर आप सिर्फ लोकल SEO भी किसी का करते हो, मतलब गूगल माई बिजनेस की जो मैं बात कर रही हूँ, मैप वाला जो मैंने पोर्शन आपको दिखाया था, अगर किसी बिजनेस का आप लोकल SEO भी करते हो तो आप कितना अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग मान लो आप कर रहे हो, सपोज मैंने इस पर क्लिक किया, तो देखना सोशल मीडिया मार्केटिंग के फील्ड में भी अलग अलग मैनेजमेंट है। मान लो अगर आपने सिर्फ किसी के अकाउंट को आप मैनेज ही कर रहे हो, मतलब वहाँ पोस्ट वगैरह डालना या देखना किस तरह से उनका प्रोफाइल काम कर रहा है, ठीक है, किसी की प्रोफाइल सेटअप आप कर रहे हो सिर्फ, मतलब जो बायो होता है, लिंक्स इंपॉर्टेंट डालना या कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह डालना, अगर सिर्फ प्रोफाइल ही सेटअप करते हो किसी की, तो देखो उसकी अलग आपकी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर आप किसी को सोशल मीडिया का कंटेंट बना के दे रहे हो तो देखो उसकी अलग से यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, राइट। कंसल्टेशन के अलग से है। आप सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसकी रिपोर्ट्स, एनालिटिक्स आप ट्रैक करके दे रहे हो, तो उस पर देखो अलग आपके प्रोजेक्ट्स हैं, राइट। तो इनके बेसिस पे भी आप देखो तो अलग, आप इनमें भी किसी में अच्छे हो तो वो काम कर सकते हो। सी यहाँ पे देखो, फेसबुक सिर्फ हैंडल करने के दे आर चार्जिंग 14,000, राइट। आई थिंक ही इज अ
स्टार्टर को इन्होंने थोड़ा कम रख रखा है यहाँ पे, ये सिर्फ इंस्टाग्राम हैशटैग के लिए सिर्फ काम करेंगे। देखो सिर्फ इंस्टाग्राम हैशटैग, सिर्फ आप अच्छे से मतलब जो इन्फ्लुएंसिंग हैशटैग्स हैं अगर वही सर्च करके दे रहे हो अपनी बिजनेस को, तो देखो उसके चार्जेस देखो आप यहाँ से। और ये जस्ट विद इन फ्यू मिनट्स का काम है इंस्टाग्राम के हैशटैग्स आपको निकाल के देने का, थोड़ा सा आइडिया जब हो जाता है तो आप देख रहे हो यहाँ से ये ऑलरेडी लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल इस पे बना रखी है, राइट? तो दे आर अर्निंग सो मच फ्रॉम देयर। ठीक है, सो आप एक एग्जांपल ले सकते हो, अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज आप क्या कर सकते हो, यहाँ से काम स्टार्ट कर सकते हो। एंड देन यू कैन ऑल्सो स्टार्ट अप योर फर्म एजेंसी। जैसे मान लो आपकी टीम बन जाती है थोड़े टाइम बाद, जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है, सो यू हैव 2 पर्सन एक्सपर्ट इन एसईओ, सोशल मीडिया, अलग अलग फील्ड में, तो आप अपनी एजेंसी एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना के काम कर सकते हो। और यू कैन रीच आउट टू मल्टीनेशनल कंपनीज, कॉलेजेस, है ना, इंस्टीट्यूट्स। तो आप बोल सकते हो कि हमारी एक टीम है पूरी, और अपना प्रपोजल वगैरह उनको दिखा सकते हो, आपकी जो प्राइसिंग पॉलिसी है सब कुछ वहाँ पे दिखा के आप उनका प्रोजेक्ट उठा सकते हो, राइट? तो एक पर्टिकुलर कंपनी का पूरा डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट यू कैन हैंडल, राइट? एंड यू कैन वर्क एज अ यूट्यूबर। आजकल यूट्यूबर्स बहुत अर्न कर रहे हैं, बहुत। इफ़ यू आर गुड इन वीडियो क्रिएटिंग और आपको अच्छा लगता है, यू आर नॉट हेजिटेटेड बाय स्पीकिंग दूसरों के सामने इन फ्रंट ऑफ समवन, तो आप इजीली अपना यूट्यूब चैनल बना के जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसकी वीडियो बना के आप शेयर कर सकते हो, ठीक है? और जैसे ही आपके 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं एंड 4K आवर्स वॉच टाइम आपके चैनल का, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मतलब आपकी वीडियो में व्यूज आना शुरू हो जाएंगे, दूसरों की जो वीडियोस हैं वो आपकी वीडियो में दिखना शुरू हो जाएंगी, मतलब ऐड, ठीक है? और जब हमारी वीडियो में किसी और के ऐड दिखना शुरू हो जाते हैं तो यूट्यूब हमें वहां से अर्न कराता है, ठीक है? तो हम वहां से अर्निंग कर सकते हैं। तो आपने देखा है आजकल लोग किसी भी टॉपिक पे कुछ भी बना रहे हैं, बट हाँ रिस्ट्रिक्शंस ऑब्वियसली हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कंटेंट अपने यूजर को दे रहे हो, व्यूअर को दे रहे हो जो कोई बिना मतलब का है, कोई नॉलेजेबल नहीं है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं है आपके व्यूअर्स के लिए, राइट? तो यूट्यूब भी आजकल ये चीज़ देखता है कि आप किस तरह का कंटेंट दे रहे हो, वो वर्थफुल है कि नहीं है, तभी जाके आपके चैनल को मोनेटाइज करेगा और व्यूज आते रहेंगे। क्योंकि देखो एक बार आपने कंटेंट डालना है, ठीक है, वीडियो आपकी सालों साल कितनी भी पुरानी हो, लोग देखेंगे उसको, व्यूज आएंगे, और व्यूज आएंगे तो आपकी अर्निंग वहां से होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने देखा एक डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट सीखने से, कुछ स्ट्रैटेजी सीखने से आपके पास कितने सारी करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गई डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, राइट? तो और भी चीजें हैं, जब हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे उनको साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे कि ये मॉड्यूल पढ़ने का फायदा क्या है और इससे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जो हम कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर, या फिर साइड इनकम, या फिर जॉब के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? तो ये था बेसिकली आपके माइंड में मुझे क्लियर करना कि डिजिटल मार्केटिंग में आप पढ़ोगे क्या क्या, फ्यूचर स्कोप इसका क्या है, और आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं डिजिटल मार्केटिंग में। क्लियर है? कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन? It was a nice briefing, Yamini. बहुत अच्छे से आपने बताया, क्लैरिटी आ रही है थैंक थोड़ी यू। सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एंड लालच आने लग गया अभी, ऑलरेडी ग्रीड शुरू हो रही है टू डू समथिंग, नॉट अबाउट मनी बट टू लर्न एंड डू समथिंग क्रिएटिव एंड यस, राइट। प्रोडक्टिव। राइट, इवन यू विल लाइक इट, यू विल एंजॉय इट, क्योंकि एक एक सेशन इतना अच्छा होता है हमारा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकली चीजें हम देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे, तो और लगता है ओके। वो एक जो हमारा लालच होता है ना, एक ग्रीड होता है एक तरह से मैं बोलूँ, या क्रेव आप बोल लो, कि वो बढ़ता चला जाता है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना। इवन मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी राइट नाउ आई एम लर्निंग, मुझे अभी भी मैं सीख रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट आ जाता है। कब से काम कर रहे हो आप? I have been working for last 5 years in digital marketing module. ओके ओके, गुड गुड। हाँ, ट्रेनिंग पार्ट में आई केम इन 2019 ट्रेनिंग पार्ट में, बट उससे पहले मैं कॉर्पोरेट में थी, वहाँ पे पूरा डिजिटल मार्केटिंग का वही देखना सारा, ये था मेरा काम। Wonderful, wonderful. So it will be so good if I am able to learn and apply and do something. So it will really give me कि हाँ एक productive और optimism रहेगा.
राइट राइट, बिल्कुल, यू विल लर्न, डोंट वरी, इतना टफ नहीं है, इट इज इजी, बट बस यही है कि स्टूडेंट्स कभी कभी लैग कहाँ कर जाते हैं कि वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। जैसे अभी क्लास हुई, दे जस्ट स्टॉप्ड इट, मतलब लैपटॉप रख दिया, या फिर नोट्स जो हैं वो अपने प्रॉपर नहीं बनाना और अपने खुद इम्प्लीमेंट नहीं करना, तो वो चीज़ें फिर वो लैग कर जाती हैं, फिर वो एक पॉइंट जहाँ मिस हो गया आपका डिजिटल मार्केटिंग में, फिर वो कवर नहीं हो पाता। बस वही है कि वो पॉइंट नहीं मिस होना चाहिए, पूरा कनेक्टिविटी रहनी चाहिए, जो हम क्लास में कर रहे हैं वो आपने पूरा इम्प्लीमेंट करके खुद से देखा, तो हाँ, ये आपका खुद बेनिफिट होगा देखना आपको इससे। श्योर श्योर, आई थिंक इट द जर्नी विल बी एंजॉयबल फॉर श्योर। जब तक हमारा उसके बारे में पता नहीं होगा कि क्या करियर प्रोस्पेक्टिव है, क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आने वाले हैं, हम पढ़ेंगे क्या क्या, एक इंटरेस्ट नहीं जनरेट जब तक होगा किसी के माइंड में, एस्पिरेंट के माइंड में, तो वो एक जो एंथुजियाज्म है, जो क्यूरियोसिटी है, वो नहीं आ पाती है। तो सबसे पहले वी शुड नो कि हम पढ़ेंगे क्या क्या, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, ताकि वो माइंड एक हमारा क्लियर हो जाए बिल्कुल कि क्लियर हो हाँ हमें जाएगा, करना है। फोकस होके एक राइट, टारगेटेड माइंड हो जाता है कि हाँ दिस बिल्कुल वी हैव टू। बिल्कुल। अभी जैसे आई एम राइट, को रिलेटिंग, यू आर टेलिंग कि आप लिंक्स डाल देते हो उसमें, तो हम्म एसोसिएटेड अमेजोन अकाउंट अगर आपका होता है, बिकॉज हम्म जैसे फ्री है, फेसबुक पे जा रहे हैं, कोई भी हम्म, ब्यूटी प्रोडक्ट देखा या कोई वीडियो देखा तो कहते हैं मैंने ये वाला जेल यूज किया है जिसका मैं लिंक शेयर कर रही हूँ। नाउ आई बिल्कुल कैन राइट। कोरिलेट कि वो लिंक क्यों शेयर करते थे, क्योंकि उससे उनको हाँ, अर्निंग होती थी, नॉट बिल्कुल बिकॉज उनकी अर्निंग होती है। हाँ, तो वो एफिलिएट लिंक होता है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ इन्होंने ये अपना एफिलिएट लिंक डाला है यहाँ ये डाला पे। है, नॉट बिकॉज ये कि वो हमारा हाँ, बेनिफिट चाह रहे हैं, वो अपना दे आर अर्निंग फ्रॉम दैट, राइट। बिल्कुल राइट तो राइट, ये जो यस। एसोसिएटेड अमेज़न अकाउंट जो होता है, एनीबॉडी कैन मेक और समथिंग यस यस, बेसिक एनीवन रिक्वायरमेंट। एनीवन। हाँ, जो भी प्लेटफॉर्म जो भी होगा उस पे हमें देखना पड़ेगा कि इन्होंने एफिलिएट जो अकाउंट है वो अलाउ कर रखा है कि नहीं कर रखा है, जैसे अपने एफिलिएट पार्टनर्स ये बना रहे हैं कि नहीं। तो जो जो प्लेटफॉर्म्स है जो एफिलिएट पार्टनर्स बनाते हैं बेसिकली, उन सब पे हम जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बट यस, वी नीड टू चूज कि हम क्या पर्टिकुलर निश पे काम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं आई एम इनटू डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं वही प्रोडक्ट्स देखूंगी, वही प्लेटफॉर्म्स चूज करूंगी जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं एक टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रही हूँ, मैं एक टाइम पे फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स कर रही हूँ, राइट। सो आई दैट विल नीड टू गेट सिलेक्ट क्लैरिटी, हाँ वो क्लैरिटी एक आएगी। स्पेसिफिक, आपको निश और कैटेगरी स्पेसिफिक वहां पे फिर होना पड़ेगा। ओके ओके, तो राइट, ग्रेजुअली एज यू प्रोसीड तो विल बी एक माइंड में क्लैरिटी आएगी व्हाट वी आर इन फॉर, राइट। यस यस यस, बिल्कुल। अभी तो हम जब वेबसाइट बनाएंगे, ब्लॉग्स लिखेंगे, तो वहां से बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि किस फील्ड में हमें काम करना है और किस में अपनी वेबसाइट बनानी है, ब्लॉग्स लिखने हैं। एवरीथिंग विल गेट इट, डोंट वरी। इंटरेस्टिंग, गुड। थैंक यू सो वेलकम। सो आज के लिए इतना रखें, हाँ फिर हाँ, सी श्योर, यू ऑन आई थिंक वेंसडे। बाय बाय, Thank you, टेक ma'am. केयर। बाय। वेलकम गान्या, बाय।